Just to break the ice, I would like to say something about this meeting. Although we know how we are sitting in this meeting, what is the agenda of this meeting. But as you know, that water is a problem, and are discussing about the wastage of water, to conserve water, and to make the Asi river filled with the water, not with the sewage. We are here to discuss things. As you know, that huge amount of water is used in flushing the night soil, which generates enormous amount of sewage. And this is the main culprit of the pollution of our water body, especially the river. And you might all know that researches in our country and abroad has been shown the feasibility of waterless management of night soil, and which is done by the composting, and it is being used in the agriculture. But the ecological management of night soil have been carried out in many for the conditioning and transportation, in which they use the other industrial waste products to condition it and to make the pathogen less fertilizer. The benefit of such system are this zero sewage discharge, and it has missed, this waste is being used as a resource for the biofertilizer and production of fuel gas. And thus it also reduces the pathogens which are present in the fertilizer. And this is useful water conservation and does not affect the quality and quantity of water flow in the river ecosystem. As you all know, that this conventional approach to depollute rivers in our country is in which we develop costly sewage system, and the sewage treatment plants has been proved to be irrational and impractical, let me say, because in the environment there is a huge amount of sewage which remains unmanaged. And according to an estimate, I would like to say the total amount of sewage which is generated in our country, only 1/4 is being treated or partially treated, and 3/4 remains as such, which go in different water body, rivers, etc. So, in the context of the wastage of water and generating huge amount of the sewage, which is not even treated by the existing facility which we have. So, we are here to discuss a system in which the residential unit, the night soil, urine, and other grey water that could be recycled with the zero discharge system. So here we are here to discuss the pros and cons of this zero discharge technology, and if we can recover these nutrients from the sewage which is generated, what could be the comparative account of both, and what are the merit and demerits of both the system. So with this, I would like to finish my statement, but we are sticking to the agenda number 2, which has been circulated in the River Sea website site group. You know, to consult what could be the merit and demerits of the zero discharge system into the residential unit. I would like to request Mr. B.K. Jha Sahab to say something about this domestic waste discharge system. And one by one, we can take other speakers also. Hello. Jha Sahab. B.K. Jha Sahab. It is not audible, I think. Hello. Barmaji, could you hear me? Yes, yes, very well. Okay. B.K. Jha Sahab.
would you like to say something about this zero discharge system in the residential units? ये ना एक की वीडियो सबने अपनी वीडियो ऑफ कर ओके I'm reading the agenda, conceptualizing use of night soil and urine as a raw material for chemicals, biochemicals, and microbes for fertilizer production from domestic, agro, and industrial rejects. And unit operation possible for hygienic collection and transportation for use and its viability and social acceptability. We will have discussion on history of flush toilets, its harmful effect due to breaking of water natural recycling, understanding water natural recycling phenomena, and its use in effective recycling of domestic sources and industry to avoid affecting river and other natural ecosystems due to pathogen waste. Understanding legal implications, manual scavenging rules, authorities overreach beyond the scope in authorizing disposal of natural resources as a waste in the water worldwide. Hurdles expected in implementation due to vested interests like the multinational company engaged in sewage technology. Already we have expended much money on developing the sewage and STP plants. So local authorities and business mafia may interfere in this problem. Such future rejects of natural resources designed as waste and role of microbes in ease of life and conservation of sewage and solid waste into conversion into useful products. Because when we generate through this sewage system sewage, there are we want to treat the sewage and recover the nutrients so that you can use the nutrients for some useful purpose. So we can have a comparative of this also, whether to go for the zero discharge system that is more economical, or the sewage we are generating, and again sewage we are purifying and extracting nutrients for its beneficial use. That's all. Thank you. Hello. हाँ बोलिए सर, जहाँ सर बोलिए। हेलो हेलो बीके झा साहब। हाँ मैं भी सर को फोन किया हूँ, सर बोलेंगे। मैं सर को फोन किया हूँ, सर बोलेंगे। अच्छा अच्छा। हेलो अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। किसको अनम्यूट करें? अनम्यूट करिए सर। हाँ तो अभी तो आवाज आ रही है। हाँ अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। हुआ? हाँ आ रहा है आवाज। आ रही है आवाज? डबल तो नहीं हो रहा है? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। तो हम इसी से करें, फोन से ही करें क्या? नहीं हाँ आ रही है ठीक से आवाज? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। बोलिए 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 झाजी बोलिए। हम वेट कर रहे थे RS सिंह के लिए, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, अभी नहीं आया तो वो ये है
आप लोग को भी आवाज डबल हो जाएगा क्या? आवाज ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है। हाँ अरे बीके झा साहब, आप अपना एक सिस्टम को म्यूट कीजिए, दो सिस्टम लगा रखे हैं, उसका आवाज इको हो रहा है सर। वही हम समझना चाह रहे थे। ठीक है, अब हो गया। हाँ हाँ अभी तो ठीक। समझ टेक्नोलॉजी को, हाँ एक का आवाज बंद कर दीजिए तो दूसरे से बात होगा ढंग से। हाँ ठीक है। बीएचयू से कोई रहे, लेकिन लगता है अभी तक नहीं कोई जुड़े हैं। तो हाँ, हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि नाइट सॉइल जो है वो रिसोर्सेस है या न्यूसेंस है, और अगर न्यूसेंस है तो भी हम उसको कैसे एड्रेस करें। तो हम लोग जो एड्रेस कर रहे हैं न्यूसेंस को, वो सही चीज है क्या? या नाइट सॉइल अगर हम अगर हमारे लिए रिसोर्स है तो क्या क्या रिसोर्सेस है, किस तरह से ये रिसोर्स है? तो मुझे ये लग रहा है कि ये रिसोर्स है। ये हमारे लिए पहले भी रिसोर्स था, जब हम इसको लेकर के दौड़ करके यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, यूनिट ऑपरेशन की तरह से हम खेत में दौड़ के जा रहे थे और वहाँ प्रोसेसिंग होता था। यूनिट प्रोसेस बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो यूनिट प्रोसेस होता था बाय सॉइल। लेकिन जब हमारा विज्ञान इतना डेवलप हुआ है तो इसका उपयोग बहुत तरह से संभव मुझे दिख रहा है। ये संभव कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो उस चीज को हम जो समझते हैं, तो इसका कंपोस्ट में तो हो ही सकता है, वो तो पुराना चीज था। अभी हम इसको बहुत तरह के फूड आइटम्स की तरह से यूज कर सकते हैं फॉर फिश, पिग या मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनके लिए जो फूड सप्लीमेंट्स हम बनाते हैं उसमें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको हम जिस तरह से फूड को यूटिलाइज हम कर सकते हैं केमिकल्स प्रिपरेशन के लिए, जैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं और अल्कोहल बनाने के बाद बहुत सारा केमिकल्स बना सकते हैं, ये संभव है। इससे हम फिर बायोकेमिकल्स और माइक्रोब्स बना सकते हैं। आजकल जब हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं और माइक्रोब्स की तरफ बढ़े हैं, तो इससे अलग अलग तरह का माइक्रोब्स बना सकते हैं, और उस माइक्रोब से फिर बहुत तरह का चीज जैसे फर्टिलाइजर या हम कंपोस्ट भी, या बहुत तरह का एंजाइम्स बना सकते हैं, जिस एंजाइम्स का इंडस्ट्रियल यूज पॉसिबल है। और उस इंडस्ट्रियल यूज में हम जो इसका एनारोबिक अगर हम बनाते हैं, तो हम आयरन मेकिंग जो ब्लास्ट फर्नेस से होता है, कोक ओवन, और उसमें बहुत सारी चीज लगाना पड़ता है, उसको अगर हम हटाना चाहते हैं और इसके बदले हम सीधा माइंस में ही इससे प्रोसेसिंग करके उस तरह के जो एनारोबिक बैक्टीरिया होगा या एनारोबिक माइक्रोब्स होगा, उससे हम इसके तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये इस सब चीज को समझने के लिए हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हम इसको नदी में क्यों डाल रहे हैं। नदी में डालना तो किसी भी तरह से उचित नहीं था। तो हम इस चीज को हम लोग समझें कि कब कैसे क्यों नदी में चला गया, और नदी से में जाने से हम पानी के लिए हाहाकार जो मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है, कैसे नहीं मचेगा। तो हम इसको घर से कैसे कलेक्ट करें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंटली। लेकिन हम चाहेंगे कि सब लोग अपना व्यूज इस पर ये करें कि हम इसको क्यों घर में से हम गंदगी की तरह से बाहर निकालें, अपने पड़ोसी की तरफ पुश करें, और पड़ोसी भी उसको फिर हम उसको रॉट करने के लिए छोड़ें, जिसमें बहुत सारा पैथोजन है, और वो उस पैथोजन से मॉस्किटो ब्रीड हो रहा है, हमारे पूरा शहर उसके गंदा हो रहा है। तो हम इसको अपने घर में अगर हम दूसरे ढंग से इसको किसी भी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हाइजीनिक कलेक्शन पॉसिबल हो, तो हम क्यों ना करें।
पहले इस चीज को हम लोग ये करें। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं कि हमको कलेक्शन करना, हाइजीनिक कलेक्शन करना है, तो फिर उसके वेरियस अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को हम लोग एक एज केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का ये सब चीज होता है, जो मटेरियल हैंडलिंग का, कि वो कैसे इसको हाइजीनिकली कलेक्ट करके और रॉ मटेरियल की तरह से यूज होने के लिए अलग जगह पर कहीं भी भेज सके, या इन सीटू वहां पर भी ट्रीटमेंट कुछ चीज में कर सके या पार्सली ट्रीटमेंट कर सके। इस चीज के लिए हम लोग उनका सहायता ले सकते हैं। हम लोगों के जो ओल्ड एक्सपीरियंस जो है हम लोगों का, और जो यंग माइंड है जो BHU जैसे या IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस का, वो उन लोगों का यूटिलाइज करते हुए हम कैसे वहां तक पहुंचे, इस चीज के ऊपर हम चाहेंगे कि आप लोग भी अभी पहले कि हम क्यों करने लगे इस चीज को समझें, और सब लोग बताएं कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम इस चीज को, जो रिसोर्सेस है हमारा, उस रिसोर्सेस को हम गंदगी मान करके, वेस्ट मान करके हम फेंक रहे हैं। और जब इस चीज को हम जो सबसे यूजलेस चीज हम मान रहे हैं वो अगर वेस्ट नहीं है, तो फिर इंडस्ट्रीज में जो चीज है और बाकी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे, उसको स्लोली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्यों वेस्ट बोले इसको, इस चीज के बारे में जिनका जो व्यूज है हम चाहेंगे कि लोग बताएं। राय जी, आप बोलेंगे कुछ इसके बारे में, या डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय वर्मा बता सकते हैं? डॉक्टर विजय वर्मा, पहले आप बताइए। जरूर जरूर जरूर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं, झाजी के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर लेने वाला ये विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं भी अपना टाइम निकाल के यहाँ आ गया, और मुझे लगा कि इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट आज की डेट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम शुरुआत करते हैं इसको, पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद दे दूं, UN राय साहब को भी धन्यवाद दे दूं। और इस विषय की ओपनिंग है, ओपनिंग में भले ही हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन स्टार्टिंग जब होती है तो थोड़ों से होती है, बाद में एक तूफान बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नाइट सॉइल कहते हैं तो मेरे दिमाग में एक पहली बात ये गूंजी कि व्हाई टू नाइट सॉइल, इट शुड बी ए डे सॉइल और मॉर्निंग सॉइल, और व्हाई इट इज सॉइल। बात यह है कि व्हेन वी स्टडी एंड सी द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग टू क्लीन द एनवायरमेंट, एंड क्लीन द एनवायरमेंट मीन्स क्लीन अवर बॉडी। अगर हम देखेंगे तो दो एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट इज अवर बॉडी and external environment is the environment to which we are indicating at the moment. But these two environments are interfacing with each others. As soon as we take the air, it goes inside our body, and there is an interface in external and internal atmosphere. So practically, if you look keenly and precisely and to the point, then you will find the human body is a mechanism which is recycling the environment, either through the air or through the eating. Whatever we eat, we already recycle it, and after the recycle we excrete in the form of the urine or fecal. So these two things which we say it is a nice soil or it is a bad thing, I say it is a good thing, already been recycled by the natural system of human body. And when I saw today in my morning and tried to discover the importance of the urine, then I found that in Roman system, pre-industrial area, the urine was so much important that it developed as a economy, where the human urine was used to making in toothpaste type, the leather making, medicine making, and so on. So it was so important that during their days they used to collect the human urine, sold it, and provide the tax to the government. As
when we analyze this and found there is a nitrogen, phosphorus, and potassium, and with the ratio of 10 into 1 into 4. So these three elements are very important for the further propagation of the nature. And after that, if we just go to the fecal matter is a nutrition. It is a highly important nutrition for the nature to develop. When these are practically is the life-giving sources to the environment, and we think ourselves so smart and intelligent and developed that we throw it into the streets, make it a centralized collection system, developed it into such an nexus that we just throw it into the river, which is our life source. So practically we are making our life source into the dead, diseased and toxic source. So this is very, very significant subject at the moment we are discussing it. If we know we have got some technology, as Mr. B.K. Jha used to tell me, that if we control this fecal matter, this urine, and use it in a benefit of society for the nature, then the things will be totally U-turn. There will be total U-turn in a sense of economy, in sense of nutritional development, in sense of life development. Because if we just collect it at the source it as our home, and we just collect and use it there and make it or convert it into a useful matter through either the urine and fecal matter as a nutrition, as a manure, then the cycle is become more positive fashion. Positive fashion means what we will grow, it will be organic material. That organic food, when it come to again to our system of recycling, slowly and gradually our human bodies are become the engineering system of to clean the whole world, whole globe. So it is very important. And now the significance is enormous. Significance is very, very highly significant. It is for life. I will keep it this at the very top of the agenda of my life, or whatever it is. And so when we have so much huge importance of this subject, so it should be implemented. So first implementation, my just suggestion that it should be called as a day soil or morning soil. So because when in morning the sun comes and it gives life to everything. So as it is just like that in morning, if soil come, it gives life to nature, to the earth, to the even our water bodies, water systems, air. So to whom we call the Panchabhut system. So we can improve the quality of the Panchabhuta, that which makes our lives. So the importance is huge. And now comes the second impact factor. What will be able that you can imagine very well. If you develop an economy, if you develop disease-free environment, if you decreases mortality rates, because I find that nearly 1.5 million infants, they died just because of diarrhea. So, and diarrhea is the contamination of the water. So waterborne disease you can check if you can control this morning soil at our home. So this is the huge factor. And third is how to implement. So how to implement is a technological things, which is engineers like B.K. Jha can have already developed it and can do it very well. So many times he was so enthusiastic, and I too understand him, that we can develop a small unit where at every home, if you in a जैसे मधुमक्खी honey bees, they collect the drop of the honey and it become a huge reservoir. So just like honey bee droppings,
So we can collect at our home, develop it in a product and use it for the whole humanity and environment and the whole globe. The things will change enormously. थैंक यू वर्मा जी। आपका प्रश्न है कि इसको नाइट सॉइल क्यों बोलते हैं। नाइट सॉइल इसको अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही बोले होंगे, इनको अंग्रेज लोग ही बोले होंगे। तो वहाँ इंग्लैंड में इसको बहुत वैल्यूएबल मानते थे और रात में जो किसान हैं वो इसको शहरों से कलेक्ट करके टेराकोटा पॉट में और थेम्स नदी के थ्रू अपने खेतों में ले जाते थे। और चूंकि ये रात में उठा करके ले जाते थे तो इसीलिए इसको नाइट सॉइल बोला गया। और इंडिया में इसको डे सॉइल बोलेंगे। हाँ नहीं, अभी ये जैसे हनी है, आपने सही एग्जाम्पल दिया। जो हनी एक्सक्रेटा है बी का, उसी तरह से सभी जानवर का जो एक्सक्रेटा है वो किसी न किसी रूप में बहुत यूजफुल है। और इवन जो हम फल खाते हैं वो आप जो बोटेनिकल लोग होंगे सब लोग बता सकते हैं, यूएन राय साहब बता सकते हैं कि वो फल जो है वो अल्टीमेटली पेड़ पौधे का मल है। जो मेरे लिए फल है वो पेड़ पौधे का मल है और हमारा मल जो है वो अभी तक के रिसाइकिल होकर के पेड़ पौधे के लिए फल था, उनके लिए फूड था। तो ये जो नेचर का रिसाइकलिंग का खुद का बना हुआ था, उस चीज को ईज ऑफ बिजनेस के लिए एक हम लोग का वर्ड है कि ईज ऑफ बिजनेस, बहुत आजकल इस चीज को लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो ये ईज ऑफ बिजनेस के लिए इंग्लैंड में 1860 में इस नाइट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था तो उस समय में ईज ऑफ बिजनेस के लिए लोगों को अनएम्प्लॉयड करके किसान को और मजदूर को सस्ता मजदूर मिले इंडस्ट्री को, इसके लिए उनको शहर में लाया गया। और शहर में जब वो आए तो उनके लिए टॉयलेट जो है वो एक समस्या थी। तो उस समस्या का निदान उन लोगों ने किया कि पानी में बहा दो। तो थेम्स नदी गंदी हुई और वहीं से कोलेरा का शुरुआत हुआ है। उसी समय में कोलेरा और मलेरिया ये सब चीज जो ठंडा देश था वहां शुरू हुआ और वहां से फिर सब जगह पर ये फैला है। कुछ इस तरह का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो इस तरह से जो पानी में डाला गया तो उसके चलते और उस समय तक में कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या इसको किसी भी तरह से ट्रीटमेंट का लोगों को मेथोडोलॉजी पता ही नहीं था। इसलिए 1860 से 1880 में हम आते हैं। उस समय में कलकत्ता शहर का वही इंग्लैंड के जो इंजीनियर्स थे, जो सिटी प्लानर थे, वो जब सिटी प्लानिंग कर रहे थे तो इंडिया के लिए उस तरह का पानी में डालने का इसको टॉयलेट को नहीं अलाउ किए थे। और वो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग जो इंडिया में चलता था शहरों के लिए उसको अलाउ किए थे। और वो जो हमको 1980 तक हमको वहां पर दिखा है शाम बाजार एरिया में कलकत्ता में। तो ये किसी भी तरह से हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो पानी में डाल क्यों रहे हैं, ये उसको हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और पानी में डाल करके हम अपनी समस्या को किस हद तक बढ़ा रहे हैं और पानी में ना डालें तो अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में शायद प्रेम आनंद है, अभी उनको देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं, वो भी केमिकल इंजीनियर है। और हम और कुछ खोजना चाह रहे थे कि जो लोग इस चीज को ये करें और सब लोगों को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं इस चीज को ये करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ये मल और फल की चीज है और ये पेड़ पौधे भी उस तरह के हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा राय साहब इस चीज के बारे में थोड़ा अपनी बात कहें। झा साहब आप थोड़ा कैमरा सामने रखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में है तो वो, हाँ थोड़ा सा कैमरा सामने, वो छत को दिखा रहा है, पंखा दिखा रहा है, आपका फेस नहीं दिखा रहा। अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, हाँ अभी थोड़ा ठीक है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कंप्यूटर में हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फोन में ही हम कर रहे हैं, ठीक है, फोन से ही जा रहा है, तो कंप्यूटर का हमारा कैमरा ऑन क्यों नहीं हुआ, हमको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा। लेकिन वहां हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर में कि हम हैं। नहीं, आप लॉगिन हैं, आप लॉगिन हैं,
कंप्यूटर में भी लॉगिन है ना? हाँ 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 तो कंप्यूटर का अरे ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। दे दें चलिए आपको। कहीं यहीं से बढ़िया चल यहीं रहा से हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। तो राय साहब कुछ बताएं कुछ। नहीं, हम वही ये नाइट सॉइल का जो पुराना सिस्टम था वो कैसे खत्म हुआ इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो ह्यूमन सेटलमेंट सिटी में बहुत होने लगे, लोग विकास की दौड़ में शहरों में आने लगे, तो शहरों में उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जैसे गांव की व्यवस्था थी। और सिटी में चूंकि एग्रीकल्चरल फील्ड से काफ़ी डिस्टेंस था और नाइट सॉइल वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन उसकी कंडीशनिंग करने में समस्या हो रही थी। और उसी बीच केमिकल फर्टिलाइजर भी इन्वेंट हुआ और केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज होने लगा। तब ये जो सीवर बेस्ड सैनिटेशन सिस्टम है जिसमें हम काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वाटर को वेस्ट करते हैं, उससे सीवेज जनरेट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो न्यूट्रिएंट नाइट सॉइल या यूरिन का जो सीवेज में चला जाता है उसके न्यूट्रिएंट की रिकवरी के लिए भी वी आर वर्किंग। आर.एस. सिंह साहब आए नहीं, उनका मेन ये था डिस्कस करने का कि सीवेज को भी हम लोग ट्रीट करके और उससे भी न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस न्यूट्रिएंट को, लेकिन सीवेज इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग देन दिस नाइट सॉइल। नाइट सॉइल तो जैसे पहले उसमें ह्यूमस की कंटेंट इतना अधिक होता है कि अनफर्टिलाइज एग्रीकल्चरल फील्ड्स को ये काफ़ी फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ पर सोचने का, जैसे आपने अभी बताया, बहुत अच्छा बताया कि प्लांट्स के ये जितने फ्रूट्स और ये सब हैं एक तरह से उनके एक्सक्रीशन प्रोडक्ट हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस दे सिंथेसाइज देयर फूड, और फूड का जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट होता है वो फ्रूट में या रूट सिस्टम या इस तरह के जो फ्लावर में है इसमें हो जाता है और उसको हम लोग अपने बेनिफिशियल यूज के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट, जितने वेस्ट हैं इनका भी हम लोग एग्रीकल्चर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वर्मा साहब ने बताया कुछ पैथोजन के बारे में। इसमें एग्रीकल्चर में जब हम एज सच यूज करते हैं तो तमाम पैथोजन जो ह्यूमन स्क्रीटा में रहते हैं, यू माइट बी नोइंग दी एस्केरिस, हेलमेंथिस या इसके एग्स वगैरह या कुछ और वर्म हो सकते हैं जो एग्रीकल्चरल सॉइल में जाके वहाँ के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में फूड चेन कंटामिनेशन के थ्रू कंटामिनेट करते हैं, फिर वो ह्यूमन बॉडी में आके उसका बैड इफेक्ट है। तो एक तो उसकी प्रॉपर कंपोस्टिंग, हाई टेम्परेचर पर उसकी कंपोस्टिंग जब होती है तो टोटल पैथोजन लेस हो जाता है। उसके अलावे डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उनके साथ अमेंडमेंट करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अमेंडमेंट से जो उसके कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं वो नलीफाई हो जाती हैं और वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ एज ए बीइंग साइंटिस्ट एंड आई हैव ए वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वाटर का वेस्टेज, एक तो जो सीवर बेस्ड सीवेज का सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, इसमें हम वी वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर और उस वाटर को हम लोग जो अच्छा वाटर है उसको गंदा वाटर में परिवर्तित कर देते हैं। और फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के ट्रीटमेंट प्लांट, इवन रिकवरी ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, रिकवरी ऑफ प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम द सीवेज, इस तरह की टेक्निक पीके सिंह साहब चले गए, नहीं तो वो बताते कि किस तरह से उसमें से हम इनरिच करके डिफरेंट मेटल्स या इस तरह की धातुएं हैं उनको निकालते हैं। यहीं पर माइक्रोब्स का भी रोल होता है। तो हमारा कहने का ये मतलब कि जो सीवेज जनरेट करते हैं उसमें तो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो वाटर है उसका काफ़ी वेस्टेज होता है और फिर हम जो गंदगी के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो जो ह्यूज अमाउंट में सीवेज जनरेट होता है उसका न तो इस देश में प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है
एक अभी हमने आंकड़ा बताया आप लोगों को, टोटल अगर सीवेज जो जनरेट होता है अपने देश में, उसका 1/4 ही हम लोगों के पास ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसका 1/4 ही हम ट्रीट करते हैं। 3/4 वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। वो एज सच या तो वाटर बॉडीज में या रिवर सिस्टम में, लो लाइंग एरिया एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस तरह जाके तरह तरह के पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आज हम लोगों को यही डिसाइड करना है कि हम लोगों का जो पुराना सिस्टम नाइट सॉइल यूरिन को डिस्पोज करने वाला, या उसको किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते थे। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि जिस तरह प्राचीन काल में हम लोग अपने नाइट सॉइल का डिस्पोजल करते थे, वही तरीका मोर टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड सो दैट इसका जो वाइड इफेक्ट है, एक तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बट इट हैज सम प्रॉब्लम लाइक पैथोजन इन्फेक्शन एंड अदर थिंग्स। सो scientific and technological interventions are required before going for a zero discharge system of this residential units. इतना ही कहना है और तो थैंक यू राय साहब। आपका ये प्रश्न है कि इसमें पैथोजन जो है, पैथोजन वो हार्मफुल है, तो पैथोजन को हम कैसे एड्रेस करें? तो डॉक्टर साहब शायद बता पाएंगे। और हमने जो स्टडी किया है, ये पैथोजन, जितना भी पैथोजन है इसमें, वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 70 डिग्री में, 45 डिग्री में 10 मिनट में और 70 डिग्री में इंस्टेंटेनियसली वो जो है डॉर्मेंट या किल हो जाता है। तो अगर हम अपने प्रोसेस में ये मतलब उस जो बोलते हैं कि हम जब इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर हम उस रेंज में ले जाते हैं 45 से 60-70 के बीच में, तो हमारा उसका पूरा का पूरा पैथोजन किल हो जाएगा। और उसमें अगर हम इस टेम्परेचर पर इसको हम ड्राई कर ले, तो ये जो ड्राइंग एक केमिकल इंजीनियर के रूप में ये भी एक यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं एक्चुअली, जो जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होता है, उसको हम लोग, और जगह चेंज हुआ या कुछ उसका फॉर्म चेंज हुआ तो उसको हम लोग यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये यूनिट ऑपरेशन जो हम इसको मान लीजिए हम गर्म किए और गर्म टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा करके और कलेक्ट जब कर रहे हैं, उस कलेक्शन में हम अलग अलग तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेटिक कलेक्शन जो एयर से, कंप्रेस्ड एयर से हम उसको कर सकते हैं। अब उस कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर हम अधिक रख सकते हैं, जिससे कि वो टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर रख सकते हैं, और उसी में हम उसको एयर ड्राइंग करके निकाल सकते हैं, तो पूरा पैथोजन किल हो जाएगा। या हम पानी में ही जो हमारा सपोज अभी जो सिस्टम है उसको हम अलाउ करते हैं कि वो वैसे ही रहे, सिर्फ उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम पानी लोअर वाटर कंटेंट के साथ, मतलब मान लीजिए अभी 7 लीटर हम प्लस करते हैं, उसको 2 लीटर जो अभी आया है बहुत तरह का इस तरह का 2 लीटर में हम उसको फ्लश करें, और 2 लीटर में फ्लश करके और उसका जो हमारा कंटेंट बना उसको फिर हम पॉसिबिलिटीज है कि हम इवेपोरेट करें। लो प्रेशर इवेपोरेशन करने से, जैसे हम मेडिकल जो जैसे पाउडर बनाने के लिए जो इसमें मतलब दवाई बनाने वाला या टूथ पाउडर जैसे बनाते हैं, तो उस समय में जो पाउडर बनता है तो वो लो प्रेशर इवेपोरेशन मेथोडोलॉजी है। या मिल्क जो हम बनाते हैं, मिल्क को गर्म करके हम जो है उसको लो प्रेशर इवेपोरेशन ही हम करते हैं वहाँ, तो उसका टेम्परेचर वही 60 to 70 रखा जाता है। तो उसमें पूरा का पूरा जो ये है एज बढ़ जाता है जी। हाँ, उसमें दूध के सारे जो मतलब जो ये है वो मर जाते हैं। हाँ, पैथोजन जो है वो किल हो जाता है। हाँ, किल हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे नाइट सॉइल में भी पैथोजन जो है वो किल हो जाएगा, और उसका हमारा एक्सक्रेटा जो है हमारा करीब करीब एवरेज 300 से 400 ग्राम होता है, और उसमें 80% ऑलमोस्ट जो है हमारा वाटर रहता है, वाटर कंटेंट।
तो और हम 2 लीटर मान लीजिए पानी डाले, या अलग हम और भी सिस्टम्स जो हम उन लोगों के साथ मिलके, जो हमारे केमिकल इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिल करके हम कंप्रेस्ड एयर या सक्शन मेथडोलॉजी या और भी मटेरियल ट्रांसफर का मेथडोलॉजी सबको यूज करते हुए अगर हम इसको सिर्फ 60-70 डिग्री में अगर हम कलेक्ट करते हैं तो पाउडर के रूप में, तो हार्डली एक आदमी का 80 ग्राम से 100 ग्राम हमारा पर डे का कलेक्शन होगा। और उस कलेक्शन को हम ट्रांसपोर्ट कर इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर। और ये जो है यूजफुल चीज होगा, उसको फिर हम जहां ले गए वहां पर जो हम बताए पहले कि हम उसको माइक्रोब्स टू एंजाइम्स टू फर्टिलाइजर या और भी बहुत सारी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस दिन हम लोग डिस्कस भी किए थे, विद्या बाबू थे और हम लोग उस चीज को शायद अभी भी जुड़े हुए हैं हम लोगों से। तो हम लोग जो फर्टिलाइजर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें जो हम लोग उस दिन बहुत सारा चीज जो फर्टिलाइजर का है उसको अगर हम इसमें राय साहब बताएंगे क्या एजो क्या था? एजोबैक्टर। हाँ, तो उस तरह के माइक्रोब्स को अगर हम इसमें डालते हैं उनके लिए ये फूड होगा और ये सब पूरा उसमें भी कन्वर्ट हो, तो सभी अलग अलग तरह के मतलब चीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। या जो हम पाउडर है तो इसको हम वही जो फूड आइटम की तरह से फिश के लिए या इसके लिए जो फूड आइटम्स बनता है उसमें हम मिक्स कर सकते हैं। तो इसका इमेंस बहुत तरह का यूज बता रहे हैं कि ये एंजाइम जो बनेगा उसका फिर उससे हम जो हमारे घर से जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उस सब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में या किसी और यूजफुल चीज में। और जैसे बताए हम कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में इससे हम आयरन मेकिंग और एल्यूमिनियम मेकिंग भी कर सकते हैं जो बहुत इजी होगा। और ऑफ कोर्स उस सब के लिए हम लोगों को लॉन्ग टर्म रिसर्च का जरूरत है अलग अलग चीज में, और कुछ रिसर्च हुआ है। हम अधिकतर चीज जो हम बोल रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीज का रिसर्च हो चुका है। बस आइडेंटिफाइड माइक्रोब्स हैं कि ये इस चीज के लिए इस माइक्रोब से होता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए उनको रॉ मटेरियल का फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो हम जो इतना मान लीजिए 8 अरब लोग हैं पूरे दुनिया में, हम तो पूरे दुनिया का इस चीज को के लिए समझेंगे तो 8 अरब लोग जो हैं उनका अगर एक्सक्रेटा जो है रोज का वो इतना अधिक है जो हमारा बहुत सारी समस्या को का निदान हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को आगे इस तरह से समझने में का कोशिश करें कि हम इसको एक तो यूज है और लेकिन इसको हम यूज तो अलग अलग तरह से कर ही सकते हैं। तो उस यूज में हम और भी लोग जुड़े और हम लोग कैसे इसको हाइजीनिक कलेक्शन को साइंटिफिक रूप से एक BHU में इस चीज को आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए चीज को आगे ये करें। और हम चाहेंगे कि इस चीज सबको और भी कोई जो डिस्कस कर सकते हैं। क्या प्रवीण है यहाँ? हेलो, प्रवीण नहीं है क्या? और कौन है अभी जो इसमें? हेलो, प्रेम जी। हाँ हेलो, हाँ हम प्रेमानंद हैं सर। प्रेमानंद है, आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप इस चीज को समझे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। मुझे खुशी होगी कि मतलब आप एक केमिकल इंजीनियर के रूप में अभी जो थोड़ा सा सुने उसमें जो भी बता सकते हैं बताइए। फिर हम फिर हमसे इन्वायरोनिक्स से जो श्रीधर जी हैं उनसे भी हम अगर कनेक्ट हैं तो उनसे भी बात करना चाहेंगे, जो अभी तक उनसे हमारी बात हुई है उस चीज को समझना चाहेंगे और हम लोग कैसे आगे बढ़े इसके बारे में उनका कुछ प्लान है तो उस चीज को भी हम समझना चाहेंगे। तो पहले प्रेमानंद कुछ बोलिए। सर थोड़ा सा ऐसा है कि उसके बारे में थोड़ा सा मुझको थोड़ा सा और अध्ययन करने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी समय तो सुन करके हम अभी थोड़ा कुछ समझने का प्रयास आप सुनिए और समझिए और आप इससे जुड़ करके कैसे इस चीज को भी मतलब आप रांची में हैं तो रांची में BIT मिश्रा में कैसे आप वहां जाकर के उन लोगों को इस चीज के बारे में बताएं, कैसे हम लोग आगे इस चीज को समझें वो लोग। और वहां पर भी हम कुछ बच्चों लड़कों 4th ईयर के बच्चे हैं उन लोगों से तो उन लोगों को ले आगे इसको बढ़ाना है वहाँ।
तो आप पूरी चीज को समझने में समझिए, कोशिश कीजिए। जहाँ जो नहीं समझ पा रहे हैं वो प्रश्न भी कीजिए। अच्छा, ठीक है सर। ठीक। अभी हम अगर श्रीधर जी हैं तो श्रीधर जी से हम चाहेंगे कि वो बताएं कि अभी तक हम लोग जो बात किए हैं उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। उनका काफी कुछ प्लान भी है, तो हम लोग से समझना चाहेंगे। Namaskar. Thank you very much for inviting me also to this meeting. And I'm really happy. The other day I spoke to Jaji also, and it is a resource, no question about it. And how we have been using it, and so in my own experience, way back in the 80s, when I moved out of ONGC and started working with communities, we tried, in some of the rural housing context, we had, kind of connected all the toilets and made them into biogas. We did succeed in making biogas, but it could not, kind of sustain, because, after some time, there was someone creating, politics around it, saying that, how can you cook with this, and those kind of problems, which we did not anticipate, in the beginning. My own, this thing now, in the context of what we are speaking, is that we should start some pilot projects, and maybe there are we can collaborate with Sulabh Shauchalaya, take some of those and demonstrate that this is possible in a significant way. Similarly, there is another small group here in Delhi which calls itself Basic Shit, and is a young man who is trying to see how we can transform these waste into, because I think 95% of the water that we use in urban area, we actually use good water for wasteful purposes. We spend a lot of money, almost 14 to 15 rupees per kiloliter getting it, and from distant places, especially places like Delhi, are getting it from Ganga, from Yamuna, from now they are wanting to displace 40 villages just for water for Delhi in Himachal Pradesh. So it is becoming almost criminal now, the use of water in urban areas. So I would think that, I am also trying to work out if there are some resources to actually implement, what Dr. Jha has been saying, so that, for making it viable, unless we demonstrate more and more, it is going to be very difficult to get over these vested interests. That is my understanding. Thank you, Sridhar Sahab. When you are talking of vested interest, then let me, okay, I will speak in Hindi only. So, मैं बताऊं आपको, vested interest सिर्फ यहाँ इंडिया तो हमको सेकंड इसमें होगा. वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं, उनकी तरफ से हम लोगों के ऊपर काफी ऑनस्लॉट होगा इस चीज के लिए, जब ही वो समय आएगा. क्योंकि मुझे मालूम है कि जब यूएसए में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो इवन सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज होता है उसका यूटिलाइज करके वो फर्टिलाइजर बनाए, और उस फर्टिलाइजर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, और गोल्ड बोल करके, ब्लैक गोल्ड बोल करके, और उससे जो फ्रूट्स या इस तरह का चीज बना, उसको यूज करने वालों के लिए को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी और कारण से भी हुआ होगा, तो उनके ऊपर उन लोगों ने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस चीज में कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हो, तो उन लोगों ने उनके ऊपर क्लास सूट किया है यूएसए में. और उन लोगों का ये सब चीज मुझे पता चल रहा था, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए
वो क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए उन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। उसमें हम उनका मतलब उस सोशल मीडिया में हम उसमें इंडक्ट हुए, तो उन्होंने हमको जब और उसका हम कुछ रिप्लाई जो डालते थे तो मुझे वो उसमें से हटा दिए हैं। ये इस तरह का सिचुएशन है। तो हम लोगों को इसके लिए भी तैयार होना होगा कि हम कैसे आगे, जो हमारे ऊपर भी हम लोग अगर कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी ही उस तरह के लोग भी आएंगे, जो बिजनेस इंटरेस्ट जिनका मारा जा रहा है वो इंडिया में भी मारा जाएगा, क्योंकि चेंज ओवर चेंज को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बिजनेस में चेंज, जो बिजनेस तो ऐसे ही लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद करके बिजनेस में ईज ऑफ बिजनेस में लगे हुए हैं। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि IAEMP का जो अभी तक जो हम लोग अचीव किए हुए थे, उसको बिल्कुल ही इस गवर्नमेंट को उसको ईज ऑफ बिजनेस के लिए उसको पूरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो उस चीज के लिए भी हमको सावधान होना होगा और हमको करना होगा। लेकिन मुझे ये इतना आसान चीज लग रहा है कि और इतना ही हम मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो बोलते हैं कि हम पानी में डालना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही नहीं, मतलब डेलिबरेटली, मतलब जो एक लाइफ को का सस्टेनेबिलिटी जो है उसको किल करके, उस प्रोसेस को किल करके और बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास हुआ है पूरे वर्ल्ड में। और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को जस्ट बढ़ाने के लिए ये चीज हुआ है। अभी हम थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस करते हैं कि 2011 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो एक कोशिश किया गया था, IIT कंसोर्टियम द्वारा गंगा का स्टडी किया गया था। और उस स्टडी में क्लियरिटी से बताया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना पूरे 100% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लीजिए, और उससे जो आप जो वाटर हो रहा है उस वाटर को आप जब भी किसी भी वाटर बॉडी में जो जाएगा ही और नदी में अल्टीमेटली जाएगा, तो नदी का नाइट्रिफिकेशन होगा और डेड जोन बनेगा और वहां पर जीव जंतु हो ही नहीं सकता है। वो जो बहुत तरह के बायोलॉजिकल जो जलकुंभी या उस तरह का चीज पैदा होगा और अल्टीमेटली वो नदी सब डेड रिवर होगी ही। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक सिंपल चीज है कि हम पूरे पानी को ये तो जब भी हम नाइट सॉइल या जो बोलते हैं हम अपने टॉयलेट के चीज को एड्रेस कर लेते हैं, उसको बिना पानी या पानी के साथ कलेक्ट करने के बाद उसको हम ड्राई कर लेते हैं, तो बाकी पानी जो हमारे घर का है वो तो गंदा होता ही नहीं है, वो तो हमारे जमुना के पानी से अधिक साफ सुथरा है। और उसको रॉ वाटर की तरह से हम यूज करके घर में जहां पर एट सोर्स, जैसे किचन का पानी, किचन में हम रिसाइकिल कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन या फ्लोटेशन करके। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। तो इस चीज को हम लोग लीगल, उस दिन भी हम श्रीधर साहब से भी बात हुई थी कि लीगली हम इस चीज को कैसे मतलब लोगों के सामने लाए, पहले इंडिया में और फिर इंटरनेशनल लेवल में, कि हम जिससे कि हमारे ऊपर जो कल को कोई प्रयास करेगा कि हम इनको लॉ सूट्स में ले जाएं, उस चीज को हम पहले से लोगों को जागृत कर लें और हम लोग जुड़ करके और इस क्रिमिनल जो ऑफेंस जो पूरे बिजनेस कम्युनिटी, सो कॉल्ड बिजनेस कम्युनिटी जो कर रहा है, जो लाइफ को, हमारे लाइफ को डिफिकल्ट कर रहा है, जो पृथ्वी को के जो वाटर होल्डिंग का जो चीज था ग्राउंड वाटर का, उसका पूरा का पूरा क्षय हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो उस चीज को हम कैसे रोक सकें और उसमें उनका इंटरफेरेंस ना हो सके, इस सब चीज को हम लोगों को समझना होगा। अगर हमारे साथ में आकांक्षा है तो हम, आकांक्षा है क्या? जी हैं, आकांक्षा जी हैं हमारे साथ। हाँ, तो उनका अनुभव इस अभी जो सुनी और उनका जो अनुभव है और जो अभी इस चीज में वो काफी काम कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि वो अपनी बात को रखें। जी सर, नमस्कार सभी को। सर एक्सपीरियंस तो इतना कुछ है नहीं मुझे अभी इस कार्य में,
लेकिन ये है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है मुझे, और मैंने अलग अलग तरह के चीज़ों पे रिसर्च, अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च किया हुआ है। जैसे अब आपकी आवाज थोड़ा कम हो रही है, थोड़ा सामने रख लीजिए माइक को। जी जी सर, अभी ठीक है? नहीं, आवाज कम हो रही है, आवाज जोर से थोड़ा सा बोलिए तब। एक सेकंड सर। हेलो। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, चलिए। जी जी सर, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि सर मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस है वो है मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड या फिर जूनोटिक हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से, और अभी करंटली मैं जो वर्क कर रही हूँ वो सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। लेकिन रिवर कंजर्वेशन और रिवर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ये मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे काफी जानकारी है इन चीजों के बारे में। मैंने कोई रिसर्च वर्क पर्टिकुलरली नहीं किया हुआ है, लेकिन आप जो बिल्कुल जो आपने अब बात कही है अभी कि जो जस्टिस है इससे रिलेटेड, जो लोग हैं जो पानी से जो लोग लड़ रहे हैं कि पानी उनको फ्रेश वाटर मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है उसका डिप्लीशन है, इससे रिलेटेड जो है एनवायरमेंटल जस्टिस है वो भी बहुत जरूरी पॉइंट है। हम साइंटिफिक बातें जो करते हैं, हम साइंटिफिक नॉलेज जो है हम उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं वो भी जरूरी है, और साथ में हम जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ध्यान रखें, वो भी बहुत जरूरी चीज है जो कि पॉइंट आपने अभी रखा है। और इंडस्ट्रीज से बिल्कुल इंडस्ट्रीज से लड़ना और उनका जो उनके द्वारा जो डिस्चार्ज किया जा रहा है वेस्ट वाटर, उसके लिए किस तरह काम किया जाए, इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी कि आप जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी लोग इस पे प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा काम कर चुके हैं, वो सब अपने मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स ये सब डिस्कशन करें, और बिल्कुल एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ हम लोग 80 रिवर पे के रिजुविनेशन के लिए हम लोग काम करें। यही मैं चाहती हूँ सर। तो आप सब प्लीज और डिस्कशंस करें इससे रिलेटेड। थैंक यू आकांक्षा। आपने एक प्रश्न उठाया कि एक तो हम लोग तो अभी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक से जीरो डिस्चार्ज कैसे हो। अब इस चीज को आपने उठाया कि इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी सेंट्रल पॉल्यूशन, अब थोड़ा सा हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बीच समझने का कोशिश करें हम लोग, और हम लोग उनसे कैसे मतलब इंटरेक्ट करेंगे तो ये तो सेकेंडरी है, वो भी करना है, वो जरूरी है। हम जो सब सिर्फ समझें और नहीं एक्ट करें तो अच्छा चीज नहीं है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में उनका फॉर्मेशन जो हुआ था एक एक्ट के थ्रू, और उनको मैंडेट किया गया था दैट दे हैव टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब ये प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन में हमेशा जो है वो अलग अलग तरह से उनको वर्क करना है, जबकि कंट्रोल में ये दूसरे जो किए उसको जस्ट देखना है और उसमें पॉलिसिंग करना है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पॉलिसिंग में लग गया है, और वो कोई किसी भी रूप में अपने जो ये है चीज जो प्रिवेंशन के लिए जो रिसर्च या प्रिवेंशन के लिए जो एक एफर्ट डालने की बात होती है, उस चीज को उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो जब ये क्लियरिटी है IIT कंसोर्टियम के द्वारा कि पानी को किसी भी तरह से आप जब साफ कर लीजिए, जो गंदा पानी है वो अगर नदी में जाएगा, वाटर बॉडी में जाएगा, तो वाटर बॉडी किसी भी रूप में संभव अपने को क्लीन करने के लिए सक्षम नहीं है, और वो डेड जोन हो जाएगा। तो एक तो पहले IIT कंसोर्टियम को ही ये चीज आगे बताना चाहिए था कि इसके लिए तो वो आगे क्या सजेस्ट करते हैं। अगर हमारे IIT जैसे का कंसोर्टियम बना हुआ है और वो बीच में रास्ते में ही सब चीज को छोड़ देते हैं और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कुछ नहीं है। हम इस चीज को देख करके क्षुब्ध हैं।
अभी अब इस चीज को सिर्फ क्षुब्ध होने से तो नहीं होगा, तो हमें सब लोगों को मिल करके इस चीज को जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है जिन्होंने इस चीज को ये किया, जैसे गंगा एक्शन प्लान है और इस तरह के जो लोग हैं, उनको ये बताना होगा कि आप उसको देखिए, और उसमें जब वो बता रहे हैं कि ये नहीं पॉसिबल है तो इसका तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव्स के लिए भी तो कुछ स्टडी होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए तो कुछ स्टडी होना चाहिए। और मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा अनुभव इंडस्ट्री का भी काफी है, रादर इंडस्ट्री का ही है मेरा अनुभव। इंडस्ट्री में सिर्फ एक जो जिस तरह से हम अपने घर में बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन, हम क्या बोल रहे हैं कि किचन का पानी अलग है, किचन का पानी अगर हम वहीं पर यूज करें तो बहुत थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट का जरूरत है। उसी तरह से बाथरूम के पानी को अगर हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पर यूज पॉसिबल है। और जो डिफिकल्ट है वो लैट्रिन का पानी, उसको हम या तो होने ना दें, दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करें, और उसको हम रिसाइकिल करने के लिए हमारा जो वाटर है तो इवेपोरेशन संभव है, और बिलो 100 डिग्री में कॉस्ट इफेक्टिव इवेपोरेशन पॉसिबल होता है। इसी टेक्नोलॉजी, इसी मतलब फिलोसफी को, आई मस्ट से ये फिलोसफी या कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को अगर हम इंडस्ट्री में ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली अभी हम इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, सब जगह के पानी को कलेक्ट करके, जैसे हम डोमेस्टिक में कर रहे हैं कि सब जगह के पानी को हम स्पॉइल कर, मतलब थोड़ा गंदा हुआ उसको स्पॉइल कर लेते हैं, सबको मिक्स करके हम बिल्कुल ही गंदा करके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल जो वाटर यूज हो रहा है उसको हम सेग्रीगेटेड रूप में नहीं करके सबको एक जगह जमा कर लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है इफ्लुएंट हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्स इफ्लुएंट का ट्रीटमेंट, केमिकल, बहुत सारा केमिकल है, बहुत तरह की चीज है, तो उसको हमको करना पॉसिबल कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जैसे बना लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री है, तो ये आवश्यक ही नहीं है। जहां हमारा जितना पानी हम गंदा किए, सेग्रीगेटेड एंड देन वहीं पर ट्रीटमेंट, तो वो, और जहां पर वो डिफिकल्ट है तो वहां पर हम इवेपोरेशन। तो ये देखेंगे कि हर एक इंडस्ट्री में ये वेस्ट हीट भी बहुत मैक्सिमम जगह मिल जाता है, तो उस वेस्ट हीट को लेते हुए अगर हम वहां पर ही ट्रीटमेंट, मतलब उसको हम ट्रीटमेंट करें और रिसाइकिल करें तो ये बहुत आसान हो जाता है। और उनको तो ये बताया भी गया है कि आप जीरो डिस्चार्ज कीजिए। दो दिन पहले हम अपने सीनियर कलीग से बात कर रहे थे, सीनियर हमारे बॉस से, जो कि अभी स्टील प्लांट में अभी तक थे, तो उनको हम देखे कि वो बताया कि वो स्टील प्लांट से, उड़ीसा में एक स्टील प्लांट है जो काफी बड़ा है स्टील प्लांट, और बोले कि नहीं हम तो जीरो डिस्चार्ज करके रख चुके हैं और वहां कैमरा हम लगा दिए हैं जहां से पानी निकलना है, और उसको हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कैमरा इससे ऑनलाइन से जोड़ दिए हुए हैं कि हम पानी नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हम उनको बताए कि अगर आप इस फिलॉसफी को लेकर के बढ़ेंगे कि आप ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं होगा, बहुत तरह का पानी, आपका वाटर का रिक्वायरमेंट घट जाएगा इंडस्ट्री में। तो अगर इस चीज में हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वाटर का रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री के लिए जो हम डिफरेंट जगह से वो लोग वाटर लेके आते हैं और करते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। इस तरह का चीज पॉसिबल है, हम लोग सिर्फ बढ़ें। और हमारे जो मतलब अगर इंस्टीट्यूट जो जिस तरह से BHU के लोग साथ दे रहे हैं, ऑफ कोर्स आज नहीं हमको लगता है कि कोई भी वहां से जुड़े हैं, लेकिन हम काफी होपफुल हैं कि वो लोग जुड़ेंगे और हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग मतलब मुझे क्लियरिटी है कि हम तो जो डोमेस्टिक को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में पैरेलली हम लोग जब भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री में, और इसीलिए मैं मैडम नहीं जुड़ी हुई हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप कानपुर को टेकअप कीजिए, और कानपुर से पूरे शहर से हम जीरो डिस्चार्ज गंगा में कैसे करेंगे हम बता सकते हैं कि एक एक इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी उस तरह से हम दे सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी देने के लिए हम तैयार हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है।
हमको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज का भी, तो हम फ्री कंसल्टेंसी दे करके लेदर जो वहाँ टैनरीज और लेदर इंस्टीट्यूट ये हैं उनको जीरो डिस्चार्ज वो कैसे अचीव कर सकते हैं। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है वहाँ उसकी आवश्यकता ही नहीं है, और वो अपना पानी को या कुछ अगर बच जाता है तो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में फिर भी नहीं, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वो टेक्नोलॉजी ही गलत है, गलत डायरेक्शन में जाना है कि हम पानी को गंदा कर लिए और इतना गंदा कर लिए कि हमको उसको अल्टीमेटली हम ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं और उसको नदी में डाल रहे हैं। तो उस हद तक हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, और जब भी हम अगर रिसाइकिल करने लगेंगे तो पानी का रिक्वायरमेंट इतना घट जाएगा कि ये जो हमारा डैम और ये सब चीज जो इंडस्ट्री या ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो रहा है इस सब की किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम खेती के लिए डैम बनाने का कोशिश करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, और खेती वाले भी मारे जाते हैं। मेरे ख्याल से ग्राउंड वाटर का वाला जो चीज है, अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ये सब चीज कर लें तो खेती के लिए भी ये डैम जो है वो हार्मफुल चीज है, उसको हमका जरूरत नहीं होगा। तो इस विषय में अभी हम आगे नहीं जाएंगे। विद्या बाबू हैं क्या? विद्या बाबू से हम चाहेंगे कि वो अगर हैं तो अपनी बात को रखें, वो जो अभी तक हम लोग समझे और इतना दिन से हम लोग जो एक चीज किए हैं, तो विद्या बाबू अगर हाँ तो इसमें 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। जो डोमेस्टिक में आप जीरो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं उसमें जो रेजिडेंट्स हैं उनकी ईज ऑफ लाइफ हो गई। ईज ऑफ लाइफ मीन्स नॉट जो आप कह रहे हैं वो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। आसानी से मतलब पानी किया, फ्लश किया, काम खत्म। अब जो हम लोग सिस्टम के लिए एडवोकेट कर रहे हैं दैट इज ए टीडियस प्रोसेस। हम उससे भी ईज वाला हम बना के देंगे उनको, या अभी जो है उनका भी सूचना है। हाँ ये सब चीज हम लोग सोचेंगे किया है। जी हम ये सब कुछ हम लोग मतलब जब भी हम लोग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में जाते हैं तो हम लोग सब तरह से सोचते हैं कि लोग जो है चेंज के भी अगेंस्ट होते हैं, तो चेंज के अगेंस्ट हैं तो मतलब इजीली चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो इस सब चीज को हम लोग समझते हैं, और हम अलग अलग, एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है सब जगह के लिए, अलग अलग। इस संदर्भ में मैं एक चाइना की बात बताता हूँ। चाइना में भी पानी का हम लोगों से अधिक प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना वाले इस चीज के बारे में कॉन्शियस हैं, और चाइना में अभी भी जो नाइट सॉइल का यूटिलाइजेशन जो है 80% है। दैट मीन्स हार्डली 20% ये फ्लश टॉयलेट है, उतना भी नहीं है, मेरे ख्याल से उतना भी नहीं है। तो अभी एक जगह पर अभी क्या हुआ, वो लोग इसका ट्रीटमेंट का अलग अलग तरह का मेथोडोलॉजी सोच रहे हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं मतलब इसको ये करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अनुभव उस अनुभव को वो लोग नहीं समझ पाए हैं। कोई भी ये नहीं समझ पाया है कि इतना आसानी से इंडस्ट्रियल रूप में जो हम बता रहे हैं कि इस नाइट सॉइल का कलेक्शन इतना आसानी से संभव है, इस चीज को लोग नहीं सोच पाए हैं। तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी जो है, वो जो एक हाई राइज बिल्डिंग जो सोसाइटी था, और वो हाई एंड वालों के लिए सोसाइटी, वहां पर उन लोगों ने यूटिलाइज किया कलेक्शन ऑफ नाइट सॉइल का, और मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज किया जो ड्रॉप्स होता है, मतलब जो इससे फ्लैट से वो कनेक्ट किए, और जो नीचे कलेक्शन पॉट था उस कलेक्शन पॉट में जस्ट मतलब ग्रेविटी से ड्रॉप होने का। तो ये ग्रेविटी समझिए इतना बड़ा चीज था, और वो ग्रेविटी से ड्रॉप करवाए। हम ग्रेविटी से ड्रॉप करने का जब भी हम देखे कि इस तरह का चीज किया, तो हमने आगे पढ़े ही नहीं, और हम समझ गए कि ये फेलियर हुआ होगा, क्योंकि ये हाई एंड का लोगों का है, और वो अगर उसमें ग्रेविटी से ड्रॉप होगा तो नीचे किसी न किसी तरह से स्मेल होगा, और वो कितना भी जल्दी उसको ये हटाएंगे तो स्मेल घर में जाएगा, और वो लोग इसको नहीं करेंगे। और हम थोड़ा और आगे जब पढ़े, और हमारी बेटी यूएसए में है, वो चूंकि इस सब चीज में है, तो वो भी हमको उसको भी मिला कहीं, तो वो पढ़ के वो पूरा डिटेल भेजी, तो बोली कि तो फेल कर गया। तो बोले हमको मालूम है, ये हम थोड़ा सा न्यूज पढ़े थे और हम समझे थे कि ये फेल करेगा। क्यों फेल करेगा? कि ये हाई एंड का सोसाइटी है, वहां जब भी थोड़ा सा भी स्मेल जाएगा तो उनके लिए वाटर जो है वो स्कार्सिटी नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके पास स्कार्सिटी नहीं है। तो
जो वो यूनिवर्सिटी जो इस चीज को कर रहा था वो उस ढंग से नहीं सोच पाया, और वो जो है उस चीज को, जबकि वहीं पर सोसाइटी में ही उसको बाकी वेस्ट के साथ ट्रीट करके वो तुरंत में डेली बेसिस पर फर्टिलाइजर बना रहा था। लेकिन वो चूंकि इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि ये जो रहने वाले लोग हैं वो हाई एंड के लोग हैं, और उनके लिए इस तरह का अगर व्यवस्था करेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको गंध नहीं एक्सेप्ट होगा, और उन्होंने तुरवा दिया और पूरा का पूरा फिर फ्लश टॉयलेट वो लोग करवा लिए हैं। जबकि चाइना में लोगों का मैक्सिमम, अभी भी चाइना में मैक्सिमम यूज होता रहा है इसका नाइट सॉइल का, और उसको जो जलकुंभी है और इस तरह के चीज से बहुत पहले से उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी होता था वहां पर फर्टिलाइजर बनाने का, वो लोग डायरेक्टली नहीं करते थे उसको, और अभी भी वो सब चीज काफी इवन हम इंडस्ट्रीज में वहां गए हैं, वहां का जो टॉयलेट सब था उसमें भी अभी मैनुअल मतलब स्कैवेंजिंग है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग वहां पर टैबू नहीं है इंडिया जैसा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग टैबू हो, तो उस तरह का चीज नहीं है। तो अभी हम इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में फिर से हम लोग और आगे बात करेंगे इस सिचुएशन को समझने के लिए। हम चाह रहे थे विद्या बाबू बताएं कुछ, और हाँ जुड़े हुए आवाज जा रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप मेरी आवाज जा रही। सभी लोगों को नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ, शुरू से ही इस बार सारी बातों को सुन रहा हूँ, एकदम ठीक है, ये रिसोर्स है। और जैसे अभी कोरोना के लिए हो रहा है ना, लोग खोज रहे हैं बेसब्र होकर के कुछ मिल जाए, वही स्थिति इसके लिए भी होगी। और आज लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध इस सब में चलता नहीं है। टेक्नोलॉजी जब है और टेस्टेड टेक्नोलॉजी यदि आ जाएगी तो फिर लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। हर ऐसी डिस्कवरी के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग अपने कन्विक्शन के साथ इसमें आगे बढ़े, और जाहिर है चर्चा तो हुई ही है। इसी बिहार से बिंदेश्वर पाठक जी का ये शुरू हुआ, और वो तो बोलते ही है कि जिसने इसको छुआ, नाइट सॉइल को जिसने छुआ वो गांधी बन गया, और जिसने छुआ वो बिंदेश्वर पाठक बन गया। इसीलिए इतना कन्विक्शन है इसके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एकदम बढ़ें, और मेरा भी अब रिटायरमेंट बहुत नजदीक है, तो उसके बाद मैं भी जहां तक संभव होगा अपने बैकग्राउंड के साथ इसमें मिलूंगा और अपना योगदान करूंगा। अभी मैं इतना ही इसके विषय में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। दुबे जी अगर है, दुबे जी, केशव दुबे जी है क्या? आनंद जी देखिए, केशव दुबे जी हैं क्या? जी हैं। मैं उनको अनम्यूट के लिए कह रहा हूँ। उनको जरा सा बोला जाए, वो अपनी बात रखें। उनका बहुत सारा मतलब मुझे लगा कि मिसगिविंग्स है, मतलब उनको लग रहा है कि शायद ये नहीं हो, तो जो भी उनका प्रश्न है हम लोग चाहेंगे कि वो अपने प्रश्न को रखें। उनका क्या क्या मतलब ऐसे चीज से मुझे खुशी होगी, क्योंकि अगर हम कहीं गलत हैं तो हम उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो केशव जी कुछ बताएं हम लोगों को, केशव दुबे जी बताएं कि क्या उनका एप्रीहेंशंस जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करें। जी आगे दुबे जी बताएं। जी सर। जी वेलकम दुबे जी। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। और मैं सभी आप लोगों को सुन रहा था, लेकिन मुझे अप्रीहेंशन नहीं है। झा साहब जैसे आपने कहा, अप्रीहेंशन कुछ नहीं है। मैं उसी डिसिप्लिन का छात्र रहा हूँ आपके बीएचयू में ही। लेकिन जो कल्चरल हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है या जो सांस्कृतिक हमारी समझ है, तो आम जनता की या जो हमारे हाई एंड सोसाइटी की आप बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, हाई एंड सोसाइटी इनफैक्ट सभी स्तर के जो समाज है हमारा, सभी स्तर के समाज के लोग जो हैं वो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपने जैसा कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे यहाँ डिस्करेज की जा रही है। अगर हम 10 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद मेरे ख्याल से इसको एक्सेप्ट किया जाता था, अगर शहरों में नहीं तो गाँव में, जो स्मॉल टाउन्स एंड डाउन टाउन्स जो हैं हमारे। लेकिन आज के परिवेश में इसको कल्चरली एक्सेप्ट करना और करवाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है और इशू है, जिसको कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको इसको टेक्नोलॉजिकली इसका जो काट है या इसका काउंटर करना है, उसको हम टेक्नोलॉजिकली कैसे काउंटर करेंगे, दैट इज द फर्स्ट इशू। द सेकंड इशू इज हैविंग अ डिसेंट्रलाइज्ड हाउस होल्ड टाइप ऑफ सिस्टम
जो हमारे घरेलू डोमेस्टिक जो आज की प्रेजेंट डे में जो हमारी सोसाइटी है, जितने लोग हैं, सभी के पास, लगभग सबके पास, जो शहरों में है, शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मोर देन 3/4 जो है वो उनके पास फ्लश सिस्टम की व्यवस्था किसी न किसी रूप में रखी गई है। उसमें से 75% में भी हो सकता है कि 60% लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, बाकी 15% लोग फिजिकली मेंटेन करते हैं, लेकिन वो फ्लश सिस्टम की व्यवस्था है, चाहे वो मैनुअली, चाहे वो ऑटो फ्लश की बात जो हम लोग बड़े वर्ग में देखते हैं, तो ये व्यवस्था है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी हमें बतानी पड़ेगी कि जो सेप्टिक टैंक सिस्टम हमारा हुआ करता है, आज भी है, और जहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है वहाँ यही सेप्टिक टैंक की व्यवस्था चल रही है, विशेष करके शहरों में। तो हमको लगता है कि हमें ट्रिपल स्टेटा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो हाई एंड सिटीज हैं, जो मेट्रोज हैं, जो हमारे मिडिल लेवल टाउन्स हैं उनके लिए अलग, और जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी अलग व्यवस्था का, जो चीपर टेक्नोलॉजीज का हमको जो ऑप्शन देना पड़ेगा। तो एक तो 3 टायर सिस्टम जो सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, इसके लिए 3 स्तर के हमें मुझे लगता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक लेवल्स या जो अफोर्डेबिलिटी टू स्पेंड। तो एक तो ये लगता है। इसके बाद जो तीसरा जो इशू नजर आता है मुझे कि जो जीरो डिस्चार्ज की व्यवस्था, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था की बात है, तो सुनने में अच्छी लगती है, और जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की बात आई है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स में भी ले जा करके फिलहाल के लिए, क्योंकि अचानक ऑल ऑफ ए सडन वी कैन नॉट चेंज टू ए वेरी डिफरेंट सिस्टम, यू नो, व्हाटएवर वी आर हैविंग। तो उसके लिए इन द मीन टाइम वी कैन हैव अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। और शॉर्ट टर्म में हम कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, जो भी स्पेशली जो छोटे रिवर्स हैं जो या नाले हैं, उनमें अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं शहरों में और टाउन्स में, अगर हम स्मॉल कंस्ट्रक्टेड स्मॉल रिवर्स या स्मॉल नालेज में, जिससे, या क्योंकि हर जगह सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज सिस्टम इवन शहरों में भी आज की डेट में मैं समझता हूँ कि बनारस के बाद प्रयागराज में सीवरेज की व्यवस्था हुई है, कानपुर में भी कहीं कहीं है, परंतु शहरों में भी सभी जगह पे, सभी मोहल्लों में हम लोग सीवरेज की व्यवस्था, सीवर सिस्टम्स की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। दिस इज बिकमिंग एन इशू एंड वी आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग दैट। और मैं समझता हूँ कि तब भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो बिल्कुल सही बात है कि वी शुड गो टू द टेक्नोलॉजी व्हाट यू आर प्रोपाउंडिंग, बट लेकिन उसके लिए हमें एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कहा, तो ये 3 इश्यूज। तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की तरफ शॉर्ट टर्म के जो हमारे सोल्यूशन हैं उसके लिए जाना चाहिए, और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की में हम जो भी है इसको एरोबिक डाइजेशन के माध्यम से जो हमारा जो सीवेज है उसको हम वो सुधार रहे हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल सीवेज में नहीं जा रहा हूँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि आज का हमारा जो है वो सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज की बात हम कर रहे हैं। सीईटीपी पे एक आपने सवाल उठाया, तो सीईटीपी पे there are many issues, you know, there are legal issues, quasi-legal issues, and there are compliances we have to comply. Being in the government, एक हम लोगों की जो अपनी एक constraint होती है कि अगर there is legal order, we have to comply by that. So we have to get the जो भी constructions हैं, जिसके लिए भी कहा जाता है डिजाइन के लिए, we have to go by the design, whether they are feasible or not, whether they are economic or not, whether they are लीगली और टेक्निकली फिजिबल और नॉट। टेक्निकली फिजिबल है, कॉस्टली है, जैसा कि आपने बताया, और ये जरूर है कि अगेन दैट ऑपरेशन ऑफ दैट सीईटीपी दैट बिकम्स अ मेजर इशू व्हिच मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू एंश्योर दैट द सीईटीपी कंटिन्यूज इट्स फंक्शनिंग ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, देयर इज नथिंग टू एलाबोरेट ऑन दैट। तो इन सब इशू को देखते हुए मुझे लगता है कि वी शुड हैव अ रादर 3-pronged स्ट्रेटजी। पहली बात की कल्चरल जो इंफ्यूज करना कल्चरली कि ये जो ड्राई टेक्नोलॉजी है इट शुड बी अडॉप्टेड। देन इन कीपिंग विद दैट वी हैव टू हैव 3-tier टेक्नोलॉजी फॉर सिटीज, टाउन्स एंड रूरल एरियाज।
और कम से कम आज के बाद से वी कैन हैव अ लीगल सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम आल्सो इन बिल्डिंग बाय लॉज बाय फ्रॉम मे बी 2022 ऑनवर्ड्स जो भी बनाएगा जो बिल्डिंग बनेगी उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला सिस्टम लगाना होगा. दैट इज अनदर इशू एरिया वेयर वी कैन make provisions for, or we can at least plead for them, those provisions getting included in the building bylaws. तो ये तो बात इसकी हो गई. इसकी बात जो CTP की जो बात आती है उसके लिए हमको जैसा मैंने कहा कि we should have short term, medium term and long term methodologies, और उसको करते हुए हम लोगों को एकदम सडन ट्रांजिशन टू ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. एक ऑर्बिट में जैसे इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करता है तो उसको बड़ा हाई एनर्जी देना पड़ता है तब जाकर को दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एज वी नो. सो दैट वे आई थिंक वी शुड slowly move towards a zero liquid discharge system. Maybe it takes 5 years, maybe it takes 10 years, depending on our acceptance of the methodology of your proponent. मुझे लगता है कि आई थिंक ये चीज जो है इसका पूरा सार ले लिया जाए. और कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है. विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्पोरल एंड स्पेशल ट्रांसग्रेशन जब होता है या टाइम जब बीतता है तो टेम्पोरल स्पेशल उसमें horizon में we have to accept everything and we should have a mix of everything, what I suppose, unless we get transferred to a higher level of functional sort of arrangements in this. Thank you. थैंक्स दुबे साहब. आप हम जो एक प्रश्न उठाए थे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम चाहेंगे कि सेंट्रल पॉल्यूशन हम लोगों के साथ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इफेक्टिवली हम लोगों के साथ जुड़े या हम लोग उनके साथ जुड़े और उनको इस चीज के बारे में अवगत कराएं. और उसमें उनका रिसोर्सेस है, हम मुझे उनके साथ काम करने का MOEF के साथ भी काम करने का मौका मिला है और हम उनके वर्किंग चीज को समझते हैं. लेकिन वो अगर एक बार ठानेंगे, एक बार उनके मन में आएगा कि हमको प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना है डोमेस्टिक का और इसका क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज का, तो और उनको अगर कंसेप्ट का क्लैरिटी होगा कि हम लोग क्या चाह रहे हैं और किस तरह से उस कंसेप्ट को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज के लिए उनके पास जो रिसोर्सेस है वो डिफरेंट तरह के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह की चीजें हैं जिनको हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पर या इस तरह से जो ग्रुप बनाए हैं वो नहीं कर सकते हैं. वो इंस्टीट्यूशंस जो है उस चीज को आसानी से वो कर सकता है और ऐसा एक्सपेंडिचर का बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होता है उस सब चीज में, हम लोगों ने जो महसूस किया है. तो अगर वो लोग इस कंसेप्ट को समझने का उनको अगर हम कह सकते हैं वी आर एबल टू इम्प्रेस अपॉन देम दैट दिस कंसेप्ट दे शुड कंसीडर, एंड वो अगर उस चीज को वो कंसीडर करने लगते हैं फिर उस चीज में आगे बढ़ते हैं तो शायद हम लोग काफी आगे बढ़ पाएंगे. तो इसमें मुझे अभी जो लग रहा है BHU के साथ साथ ये दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो अपने दायित्व को समझें और रेन वाटर ये जो ग्राउंड वाटर कमीशन है वो भी अपने दायित्व को समझें. वो एक चीज बना रहे हैं जो मुझे खबर मिली है थ्रू आवर ग्रुप मेंबर्स ही ओनली कि वो लोग पूरे एरिया वाइज वाटर का क्या मतलब ये है उसको सैटेलाइट इमेजरीज से एनालाइज करने का और सब जगह का बना रहे हैं. तो ये इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में रहेगा तो वो काफी कुछ ही होगा. लेकिन अभी हम लोग इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वो अगर इस चीज में आते हैं कि हम घर से जीरो डिस्चार्ज कैसे करें और इस चीज के लिए वो स्टडी रिपोर्ट्स ही कुछ बनवाते हैं और जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझते हुए कि लो प्रेशर इवेपोरेशन के टेक्नोलॉजी को समझना और अभी जो हमारा वाटर का कॉस्ट हो रहा है उस कॉस्ट को समझना अभी का, और वाटर कॉस्ट के अलावा जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है और ट्रीटमेंट के बाद जो उसको डिस्चार्ज करते हैं. हमारा जितना भी नॉर्म्स है, जितना भी गाइडलाइंस है वो यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करता है. हम डीन और या US EPA इसको हम लोग सैक्रोसेंट मान करके उसमें आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग ये समझें कि अगर
यूएसए में कोई पानी, गंदा पानी अगर किसी नदी में डाला जाता है या किसी वाटर बॉडी में जाता है तो उस वाटर बॉडी का यूटिलाइजेशन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो है। और हमारे यहाँ हम जब भी वाटर बॉडी में डालते हैं तो हमारी जो आबादी है, कंसंट्रेशन है जो आबादी का, तो हमारे सभी लोग, जानवर से लेकर के आदमी और जीव, सभी तरह के जीव जंतु वो अब उस वाटर बॉडी पर डिपेंडेंट है। तो हम वही नॉर्म्स को लेते हुए भी अगर हम डालते हैं, जो कि हम उसको और भी हम इजी कर देते हैं। हम जब भी हम लोग बनाने लगते थे नॉर्म्स मेकॉन में, हम लोग किए हैं इंडस्ट्रीज के लिए और इस सब के लिए, तो हम लोग इजी कर देते थे कि इंडिया के लिए अभी नहीं है, अच्छा चलो इतना ही कर दो। और वो गाइडलाइन जो है उसको अगर हम उस चीज को तो हम नदी में डाल रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए एयर पॉल्यूशन ही हम जो नॉर्म्स रखे हुए हैं, तो हमारे यहाँ अधिक लोगों को हार्म हो रहा है, तो हमारा सोशल कॉस्ट उसके ऊपर काफी हो रहा है। तो इस सब चीज को नहीं जोड़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ वाटर कहाँ से लेके आ रहे हैं, वाटर हमारा, और कहाँ उसको हम रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, वंस थ्रो कर रहे हैं, इस चीज को अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि हमारा सोसाइटी जो कॉस्ट नहीं बियर कर सकता है वो कॉस्ट हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। इस हमारे गरीबी का मुख्य कारण ये है क्योंकि हम उनके नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हमको खुद का यहाँ का टेक्नोलॉजी, यहाँ के जो आवश्यकता है। अभी एक और चीज हम बताते हैं, हमारे यहाँ कोई भी चीज जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन अधिक होता है। उनके यहाँ कोई भी चीज जो है जल्दी से सड़ेगा नहीं। अधिकतर जगह पर जो है, चाइना हो चाहे दूसरे जगह हो, इवन यूरोपियन कंट्रीज हो, लोअर टेम्परेचर है, तो वो काफी देर तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है टेम्परेचर के चलते। हायर टेम्परेचर हमारे लिए आसान है। हमारे यहाँ सोलर जो पैनल है वो आसानी से हम ये कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन एक एक जगह, छोटे छोटे जगह पर, हर एक घर के लिए, मान लीजिए हम अपना हमको सोलर बिजली का ही जरूरत है, तो हम बिजली लाइन से नहीं लेकर के, और दिन में सूरज रहता है, उस समय में हम अगर सोलर पैनल लगा दिए तो सोलर पैनल से हमारे किचन का पानी ट्रीटमेंट हो गया, उसी तरह से बाथरूम का पानी ट्रीटमेंट हो गया, और हमारे टॉयलेट को भी हम जो उसमें से हम इवेपोरेट करना चाह रहे हैं वो सोलर पैनल से हमारा ये हो जाएगा। तो हमको बिजली, मतलब हमारे यहाँ इस चीज के लिए हम सोचेंगे तो हम कर लेंगे। हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम उनके ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए, उनके ऊपर उन गाइडलाइन के लिए, सब चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो अपना बिजनेस फैला करके रखना चाह रहे हैं, और हम उसमें उनके उस लूप में फंसे हुए हैं। तो इस चीज को हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या अथॉरिटीज को समझना होगा कि हमारे यहाँ शुरू से ही बोले, उनके यहाँ वेद वेदांत नहीं है, हमारे यहाँ वेद वेदांत में बताया गया है। हमारे जो वेद वेदांत में बताया गया है कि हम टॉयलेट कहाँ करें, कितना दूर पानी से करें, पानी लोटा में पानी लेकर के हम वहां से निकले अपने वाटर बॉडी से, हम उसको किस डिस्टेंस में जाकर के, घर से कितना दूर हो, वाटर बॉडी से कितना दूर हो, ये इलेबोरेट हमारे मनुस्मृति तक में लिखा हुआ है। हम मनुस्मृति को समझ लेते हैं कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान हमारे मतलब इस तरह के लोगों को के लिए परेशानी का सबब सिर्फ समझते हैं। उसमें हमारे जीने का आधार बताया हुआ है, तो हम उस चीज को लेकर के नहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है, और हम उन लोगों के टेक्नोलॉजी को के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमको सोचना होगा, न कि हम उनके बेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीदें अधिक से अधिक दाम दे करके और उसको यूज करें, जो उनके लिए सुटेबल हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर हम लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, अब आप लोग देखा जाए। और अभी हम लोग और किन से बात कर सकते हैं? सब लोग करीब हो गया है। और कोई है क्या अभी जो जिनको हम लोग, प्रवीण है क्या? हेलो, प्रवीण है क्या? प्रवीण कुमार है क्या? जी हैं प्रवीण जी। हाँ, प्रवीण आप सुन रहे हैं? हेलो, प्रवीण सुन रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे थे। तो अब आपका प्रवीण जो है वो
टाटा स्टील के अभी एक यूनिट में उड़ीसा में कार्यरत हैं, और वहाँ कोक ओवन जो सबसे डिफिकल्ट एरिया होता है वहाँ ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर सबसे अधिक वाटर पॉल्यूशन है। उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कोल ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कोल मंगवाते हैं, उसमें 2 to 3% वाटर होता है। उसका इनहेरेंट वाटर के अलावा उसमें और हम लोग ऐड करते हैं वाटर, और उसके बाद उसको हम गर्म करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं बोलते हैं उसको। तो उसको डिस्टिलेट करते हैं और उससे वो हार्ड बनता है, हार्ड हो जाता है, और उससे जो वाटर बनता है उसको फेनोलिक सीवेज बोलते हैं, और उसका ट्रीटमेंट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो हम उस प्लांट में लगाने में मेरा योगदान रहा है। प्रवीण हमारे साथ थे, तो अभी उनका अगर प्रवीण उसके बारे में बता पाए जस्ट मतलब ये रेफरेंस में, और उसमें उस समय में हम लगवाए हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी और जर्मन टेक्नोलॉजी से, इटली का टेक्नोलॉजी, इस दोनों को दो जगह पर हम लोग यूज किए थे। लेकिन अभी अगर हमसे वही चीज बोला जाए तो हम बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी में जाएंगे, और उसी तरह का टेक्नोलॉजी अभी सज्जन जिंदल जी का JSW है, वहां पर कुछ किया गया है, और वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को भी हम समझ पा रहे हैं। तो लोग मतलब प्रॉब्लम को एग्रीवेट करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अभी प्रवीण थोड़ा बताएं कि वहां पर उनको कैसा लग रहा है, और आज जो समझे उस चीज को, ये इनको क्या क्लैरिटी हुआ और क्या कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, इनको कैसे समझ में आया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर। बताइए अभी वो जो चाइनीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा चल रहा है, और पॉल्यूट वाला कैसा चल रहा है। हाँ नहीं, वो सही चल रहा है सर, सही चल रहा है सर। हाँ, तो वाटर को आप लोग, उसका वाटर जो है वो आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरे। हाँ, सर्कुलेट कर रहे हैं ना सर, वो ये कूलिंग के सर्कुलेट कर रहे हैं ना सर वो। और वो तो क्या जीरो डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, जीरो डिस्चार्ज पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर जैसे पहले सब? हाँ, जीरो डिस्चार्ज हो रहा है ना सर, वो सर्कुलेट कर रहे हैं। उसका पीएच को हम लोग कम कर रहे हैं सर, 7.7 पीएच मेंटेन करते हुए कर रहे हैं मतलब। और उसमें फेनोलिक सीवेज, फेनोलिक जो केमिकल्स और वो सब चीज निकल पा रहा है प्रॉपरली, मतलब इफिशिएंटली निकल पा रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, उसमें जो अलग अलग जगह पर जो ये है इवेपोरेटिव सिस्टम है। हाँ, इवेपोरेटर्स जो लगा हुआ है जो बाई प्रोडक्ट प्लांट में, उस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और उसमें लो प्रेशर इवेपोरेशन जो है उसको हम लोग बहुत छोटे स्केल में किचन इसमें लगाना है हम लोगों को, जो डोमेस्टिक में। तो इस चीज को आप समझ करके रहिएगा, और जब भी जरूरत होगा तो BHU में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे चीज को, तो आप अपना प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक्स प्रवीण। विपिन शेखर जी हमारे साथ हैं क्या? जी हैं, शेखर जी हमारे साथ हैं। शेखर जी को हम नहीं हो पा रहे हैं कि किस चीज में है, तो थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बता देंगे और कैसे मतलब क्या अनुभव किए, और क्या किस तरह से हम लोगों को और आगे हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, थोड़ा बताएंगे। हेलो विपिन। Vipin, can you hear us? हेलो विपिन शेखर जी। शायद से सर उनके कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा, लेकिन प्लेटफॉर्म पे है, वो अनम्यूटेड है। और अच्छा। हाँ, देखिए कब तक
आनंद जी, आपको सब चीज में अनुभव है, और आप बताइए कि कैसे हम लोग क्या आगे बढ़े, जो आपको। मुझे इस जी, तरह की जितनी जितनी टेक्निकल बातें हुई हैं, इसका कुछ विशेष अनुभव तो मुझे है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होगी और कम्युनिटी मोबिलाइज करना होगा, वहां पे मेरा योगदान सर जरूर रहेगा। आनंद जी, हम एक चीज आपको आज भेजे थे जी, और इस चीज को लेकर के हम लोग इंडिया ही नहीं, सभी मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब या इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं, चाइना और वो जो कंट्री एशियन कंट्रीज हैं, सभी तरह के लोग इससे जूझ रहे हैं, और सब जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। पानी को कैसे हम मतलब पानी की समस्या से कैसे दूर अपने को ये करें। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो यूएसए में अगर जाएंगे तो हमको इसके लिए ये बनाना पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं उसका, सब चीज को छिपा के रखने के लिए क्या 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 बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही वो लोग समझते हैं। और उस तरह से ये मतलब बहुत उन लोगों ने कुछ इस तरह का जो ड्राई टॉयलेट को कैसे कलेक्ट करेंगे, इस चीज के बारे में 80s में कुछ ये बना करके रखे हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत वो बना के रखे हुए हैं। वो भी चीज हमको दिखा, और हम जिस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं उसमें से एक जो मतलब सक्शन वाला जो मेथोडोलॉजी है उसको यूटिलाइज करते हुए वो लोग उसके ऊपर प्रोप्राइटरी राइट आइटम बना करके रखे हुए हैं। तो हम लोग कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। लेकिन हम जो चीज कहना चाह रहे हैं वो अगर चाइनीज को बताएंगे तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी जैसे हम बता रहे थे कि वो उन लोगों को दिक्कत हुई, तो वैसे लोगों को अगर हम बताएंगे तो काफी जल्दी इस चीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अभी जो आपको बताए हैं कि वो वहां से फंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो लोग चाह रहे हैं कि इंफोटेनमेंट के रूप में इसी चीज को हम लोग इस सब चीज को कि किस तरह से लोगों का लाइफ इजी हो सकता है, और हम कैसे सब इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस चीज के ऊपर इंफोटेनमेंट के लिए हम लोग कुछ बना करके फिल्म दे सकते हैं। तो उसका इंडिया, चाइना और हांगकांग और उस तरह के वियतनाम और सब जगह की स्टोरी को लेते हुए, अलग अलग जगह के स्टोरी को लेते हुए एक दूसरे को बताने का, तो उस चीज के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि सब लोग समझें इस बात को कि हम लोग इस तरह के चीज सब के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए फंड का हमको दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप अगर करेंगे तो रिसाइकलिंग के लिए वो जो बोलते हैं, मतलब रिजर्व फंड बहुत देने के लिए वो लोग तैयार हैं। और हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे नहीं करेंगे उस चीज के बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे, जिससे कि हम आगे इस चीज को सब लोगों के सामने रख पाए, या अभी से सामने रख पाए कि कहीं से दूसरे जगह से भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चाइना से, चाइना सब चीज में आगे बढ़ रहा है। इट इज नॉट आउट मतलब जस्ट आउट ऑफ प्लेस। वो लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे जाने का उन लोगों के पास बहुतों बार मौका मिला है, और उनके चीज को जो पिछले 15-20 साल में वो काफी आगे बढ़े हैं, जबकि उनसे हम बहुत आगे थे, बहुत पहले 80s तक हम उनसे आगे थे। 90s से वो लोग बढ़ने लगे हैं और हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो हम अपने चीज को आगे समझेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, बाकी चीज को तो हम लोग समझेंगे, लेकिन ये सब मानवता के लिए है और ये पूरे दुनिया के लिए है। तो हम उसमें उस चीज सबको कैसे आगे बढ़ा पाए, उस चीज के बारे में भी आनंद जी से हम फीडबैक लेना चाहेंगे, और भी जो लोग इसमें दे पाएंगे मुझे खुशी होगी। हम लोग सब लोग जुड़े इस सब चीज के लिए। और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी सुनाई दे रहा है? विपिन जी आ गए हैं जी। जी सर, वो एक्चुअली मेरे फोन में प्रॉब्लम था इसीलिए आवाज नहीं। हाँ, तो आइए बोलिए, आप जो सुन पाए हैं ना। मेरा बैकग्राउंड ये है कि सर अराउंड 3 साल पहले तक मैं आईटी में था, विप्रो में ऑटोमेशन कंसल्टेंट था। उसके बाद 3 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे अपना मतलब लाइफ जी रहा हूँ। तो वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मतलब बेसिकली पर्माकल्चर वाले साइड से हूँ मैं अभी। एंड ऑल्सो जो एंशिएंट हमारा जो एंशिएंट वे ऑफ लाइफ है उसको रीएक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग राइट नाउ। तो दिस इज समथिंग दैट आई फेल्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हमारा वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द मेन स्ट्रीम, अगर हम उसको रूट में ही उसको ट्रीट कर लें
तो हमारा जो है काफ़ी मतलब जो टॉक्सिक फुटप्रिंट है वो कम हो जाएगा। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई जॉइंड हियर। सो कुछ थोड़ा बहुत तो पर्माकल्चर कम्युनिटी में काफ़ी बातें चलती है, जहाँ पे जैसे ट्री पिट टॉयलेट्स एक है, आपने सुना होगा, वेयर उसको जो है एक गड्ढा खोदते हैं, वहीं पे वो टॉयलेट की तरह होता है, एंड देन उस पे राइस हस्क या सब डाल के उसको डिकम्पोज कर देते हैं, फाइनली एक ट्री लगा देते हैं। तो ये एक मेथड है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ताकि कल को मेरा अपना जो फार्म वार्म होएगा तो आई कैन हैव सम वेरी लेस टॉक्सिक वाला जो एक सेटअप। दैट्स माय जर्नी राइट नाउ। विपिन जी, आप अच्छा लगा आप बताए, फार्माकल्चर फार्मा बिजनेस से हैं आप, तो आप ये समझिए कि हम इसको रॉ मटेरियल की तरह से जब भी हम ड्राई पाउडर के फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, और वो भी पैथोजन फ्री, और ये बहुत आसान है। तो ये जो है जस्ट मतलब अगर हमको जो अभी फ्लश हो रहा है, फ्लश होने देने के बाद उसको आगे हम ड्रेन में नहीं डाल रहे हैं, हम उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा जो लो प्रेशर इवेपोरेशन मेथोडोलॉजी से हम उसको कलेक्ट करके और यूटिलाइजेबल बना रहे हैं, और उसमें जो हम उसको फिर जो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स जो तो इसका फार्मेसी में भी यूटिलाइजेशन, मतलब नॉट मे बी मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका, और या उस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स इसमें अगर हम डाल देते हैं, और मेडिसिनल प्लांट के लिए जो चीज जरूरत है वो इसमें अवेलेबल होगा। और जैसे हम एक सिंपल चीज बता रहे हैं कि हमको ये नाइट सॉइल में अगर हम जिंक वेस्ट, जो जिंक ड्रॉस बोलते हैं, वो अवेलेबल होता है लेड जिंक स्मेल्टर में, और वो वहाँ वेस्टेज है, और उसको अगर हम नाइट सॉइल के माइक्रोब्स के साथ ट्रीट कर देते हैं तो वो जिंक जो है वो जिंक बेस्ड फर्टिलाइजर हो जाएगा, और उसका यूटिलाइजेशन या जिंक बेस्ड मटेरियल हो गया। अब उस जिंक बेस्ड जो मटेरियल है उसका फार्माकोलॉजी में यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन मतलब इसमें भी खेत में भी यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कि जिंक बेस्ड आपका फूड प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरह का बहुत कुछ अवेलेबिलिटी हमको दिख रहा है, और हम चाहेंगे कि सब लोग इस तरह से जुड़े, और आप अच्छा लगा कि आप जुड़े हैं, और हम लोग साथ मिल करके रहिए, हम लोग सब लोग मिल करके बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ेगा। और ये जैसे पास्ट में इंडिया का जो ग्लोरी था इस चीज को लेके आएगा। मैं गेस्टिमेट से सिर्फ बता रहा हूं कि हम लोग 10 लाख करोड़ रुपया पर एनम का सेविंग करेंगे अगर जस्ट हम अपने टॉयलेट को एड्रेस कर लेते हैं, और हम जीरो डिस्चार्ज अपने डोमेस्टिक से करते हैं, तो हम 10 लाख करोड़ का सिर्फ इससे बचत होगा। और एडेड एडवांटेज जो है वो हेल्थ का, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उधर की ओर मतलब, और मॉस्किटो के लिए जो न्यूसेंस है उसको जो प्रॉब्लम हम झेलते हैं, या अलग अलग तरह का चीज, वो सब चीज दूर होगा। हम लोगों का जो बोलते हैं ना क्लीन लिविंग जो है वो संभव है, और बहुत थोड़े से मेहनत से संभव है, बहुत थोड़े से समझदारी से संभव है। इसमें हम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत सिंपल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसके लिए। तो हम लोग और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हम चाहेंगे मुझे ये चीज जानना है कि हम जो वेस्ट है उसको और अर्लियर स्टेज में भी ट्रीट कर सकते हैं क्या? लाइक उसको उसी फॉर्म में जो है हम नेचर में वापस मिला दें, तो मतलब जिसमें टॉक्सिन स्प्रेड ना हो, तो वो चीज जरा मैं देख रहा था कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो। अच्छा, तो थोड़ा ठीक है, हम एक चीज भूल रहे थे आनंद जी, हम लोग जो एक 5 पेज का जो हम लोग ये किए थे उसको थोड़ा डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें से जो एग्जिबिट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। टॉयलेट का जो स्टेज है, हाँ, जो 5 पेज का हम भेजे थे, वो कलेक्शन मेथोडोलॉजी वाला जो चीज था, वो दो पेज है शायद, उसमें लास्ट में एग्जिबिट करके 2 पेज, उसको जरा सा हम लोग इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं तो लोग समझेंगे उस चीज को। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अभी। श्योर हम लोग बैठते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज। इस बीच में मैं 1-2 बात करना चाह रहा था। बोलिए। मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक तो था कि जो है एक मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में 80s में हम लोगों ने कंसोर्शियम ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी करके एक हुआ करता था,
उसका एक पूरा वॉल्यूम है ऑन यूज ऑफ नाइट सॉइल। तो वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर किया है। दूसरा मेरा ये था जो अभी मैंने और डिस्कशन सुना है, जो रिट्रोफिटिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीज और टाउन्स का है। तो मुझे लगता है कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है जो नए इसमें करने का, और जो स्टैंड अलोन जैसे सुलभ शौचालय से स्टैंड अलोन है, इन चीजों को हम जल्दी जो है ये कर के बाद है। श्रीधर जी, अब हम लोग इस चीज को, अगर आप जो बोल रहे थे कि कहीं आप कुछ व्यवस्था करेंगे, तो उसको अगर करेंगे तो वहां भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और बीएचयू में अर्लीस्ट पॉसिबल उन लोगों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा हमको और आगे बढ़े। और वहां पर मतलब जो स्टूडेंट्स को, या यहाँ आईआईटी को यहाँ दिल्ली के आईआईटी में भी हम कोशिश किए थे, तो हम लोग मिल करके थोड़ा सा यहाँ भी कोशिश करें। तो आईआईटी या जेएनयू का इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, लेकिन जेएनयू के पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग नहीं हैं, तो उनको भी आईआईटी में ही ये करना होगा। तो इसलिए थोड़ा हम लोग इस चीज के भी बारे में फिर डिस्कस करेंगे आपस में, और हम लोग इस चीज को यहाँ बनाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अभी ये एग्जिस्टिंग सिनेरियो ये जो डिस्प्ले हो रहा है, तो ये करने का कि इंडिया में क्लास 1 सिटी, और ये हम 2015 में ये सब चीज हम ये किए थे। और अभी बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन इस चीज को लेकर के हम एनजीटी को ट्राई किए थे कि एनजीटी वाले लोग इस चीज को समझें। और उनको हम वो लोग बोले थे कि हमको उस समय में जो ये थे स्वतंत्र कुमार जी, उनसे हम मिलने का प्रयास किए थे, तो बोले कि हम तो नहीं, अभी रिटायर हो रहे हैं और दूसरे लोगों को दीजिए। तो उन लोगों को हम भेजे थे ये चीज, और हम इस चीज को लेकर के काफी ये कर रहे थे। तो दूसरा पे इसमें जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है एंड इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इसमें हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं हम लोग। ये ऑल सीवेज ट्रीटमेंट, चलिए, and integrated pollution prevention, stop the conversion of urine and night soil into sewage with immediate effect। तो ये immediate effect तब होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन और इसको कलेक्ट नाइट सॉइल एंड यूरिन एज डिपिक्टेड इन एग्जिबिट 1। तो एग्जिबिट 1 को हम लोग सीधा देखते हैं। आनंद जी, एग्जिबिट 1 तक चले तो पेज में, है ना। हम इसमें वही सब चीज डिस्कस किए हैं और कैसे उन लोगों को ये करेंगे। देखिए, इसमें हम उस समय में जो हम ये किए थे कि हम ये टॉयलेट का ये जो पैन है उसको हम सेग्रीगेशन कि हम नाइट सॉइल एक अलग तरफ से आएगा, और यूरिन जो है वो तो लिक्विड है, तो उसको डिस्चार्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अलग कलेक्ट कर लिए। तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, यूरिन का सेपरेटली, और इसका कैसे करेंगे। इसमें हम अलग अलग तरह से जो एग्जिस्टिंग प्लस सिस्टम है उससे भी हो सकता है। और इसमें हम कंप्रेस्ड एयर का मेथोडोलॉजी रखे हुए हैं। ये कंप्रेस्ड एयर इसमें हम डालेंगे तो कंप्रेस्ड एयर से इसमें कलेक्ट होगा। और इसमें जो हम उस समय में एक्सप्लेन कर रहे थे कि गंदगी जो है वो इसमें गंदगी जो है वो इसमें नहीं आए, मतलब गंध जो है वो घर में नहीं आए, इसके लिए हम इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्लोली कंप्रेस्ड एयर का ये बनता है। तो इस सब चीज को सोचना होगा कि कंप्रेस्ड एयर स्लोली इसमें अगर हम प्रेशराइज होकर के जा रहा है तो उधर से कोई गंध नहीं आएगा। या और भी नॉन रिटर्न वाल्व इस तरह का चीज सब होता है जो हम लोग उसमें सोचेंगे, जब हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे बीएचयू से। चलिए दूसरा पेज में तो चलिए। यहाँ हम जो कलेक्शन होकर के डिफरेंट जगह से आया उसको हम उस समय में हम इस तरह से सोच रहे थे कि सीधा डायरेक्टली हम यहाँ पर एस फील्ड अप रहेगा, या इसमें हमारा पास एस है, उस चीज को एक्टिवेटेड कार्बन पहले तो ये टॉयलेट ये आया, इसको कनेक्शन के लिए मतलब आदमी नहीं टच करे उस तरह ये पॉसिबिलिटीज है, कनेक्टर उस तरह का हम लगा सकते हैं, और ऑटोमेशन वो पॉसिबल है, वो सब चीज को हम सोचे थे। और उसके बाद 250 kg का हम ये जो पॉट है उसमें हम टॉयलेट को जाने दे रहे हैं। यहाँ नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ लगाए हुए हैं जिससे कि इसमें पहुंचा
और इसमें हम स्लोली इसको इसमें मूव कर रहा है और इसमें हम ऊपर से डस्ट ये ऐश डाल रहे हैं। तो ये फ्लाई ऐश जो है पावर प्लांट का, उसको अगर हम इसमें डालते हैं तो दोनों मिलकर के वो खाद बन जाता है। और ये हम जस्ट सजेस्टिव सिस्टम्स बनाए थे कलेक्शन के लिए कि मान लीजिए ये भी कैलकुलेशंस किए थे कि 5 आदमी का घर है या एक फ्लैट है पूरा मतलब 10 तल्ले का, तो 50 आदमी का, तो उसके लिए कितना दिन तक में ये होगा भरेगा। और इसको फिर हम क्लोज करके, जो ये नट में क्लोज करके और इसको सीधा हम खेत में भेज देंगे। उस समय में हम इस तरह से सोचे थे। अभी ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये गांव सब के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, ये पूरा सिस्टम को लगाते हुए ये सिस्टम कॉस्ट इसमें बहुत अधिक नहीं आएगा, वन टाइम कॉस्ट बहुत कम आएगा। और ऑपरेटर से तो हमको खाद मिला तो इसलिए हमको फायदा ही होगा। तो ये अल्टीमेटली जो है, और ये वैक्यूम पंप और ये सब चीज जो है बहुत थोड़ा सा पावर लेता है, जिसको कि हम सोलर पैनल वहीं लगा करके सब चीज वो कर सकते हैं और कंप्लीट ऑटोमेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी हम इस चीज को दूसरे ढंग से भी करने का प्रयास करेंगे। ये भी एक सिस्टम हो सकता है। और अभी दूसरा भी सिस्टम हो सकता है कि वहां से ये जो चीज अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग चलें, ये इस तरह से हम यहाँ कलेक्शन के लिए चीज को हम यहाँ लाए और यहाँ पर ही हम इसको अलग तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर वही जो हम बोल रहे हैं कि एक कैप्सूल जैसा लगा करके लो प्रेशर इवेपोरेटिंग मेथोडोलॉजी, और वहां पर वो लो प्रेशर इवेपोरेटिंग मेथोडोलॉजी में वो पूरा चीज, या नहीं तो इसको इससे भी जो पहले वाला बनाए थे वहां से कनेक्ट कीजिए, और या नहीं तो यहाँ पर जो है इसमें ये सक्शन मेथोडोलॉजी से हम सोचे थे कि सक्शन से भी संभव हो सकता है। तो इसमें हम जो है यहाँ पहुंचा और वो लो प्रेशर इवेपोरेशन करके और पाउडर को अलग कर दिए, और उसको जो है अलग, मतलब जो वाटर जो है वो फिर उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, या इवेपोरेट बहुत थोड़ा वाटर होता है तो उतना हम फॉरगो कर सकते हैं कि जाने दो उसको एयर में, वो भी पॉसिबिलिटीज है। ये अभी हम जस्ट मतलब उस समय में इस चीजों को बनाए थे। हम इस चीज को एक चीज को डिस्कस करना चाहेंगे और इसके लिए अलग अलग तरह का मेथोडोलॉजी हम BHU और या IIT जो लोग हैं या जहां भी हमको मौका मिलेगा, आप लोग सब लोग जुड़े हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कर पाएंगे। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे साथ हो जाता है तो और भी कंसल्टेंट्स जो है, जैसे हम मेकोन में थे वहां भी काफी लोगों से हमको सहयोग मिलेगा, और ये EIL है या इस तरह के जो लोग ये हैं उन लोगों से सहयोग मिलेगा। ये मतलब इंडस्ट्रीज को हमारे डोर स्टेप पर लाने का, और ये बहुत सिंपल चीज सब होगा। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट और उस तरह का जो हम बोल रहे हैं किचन के लिए भी, और वो जो इसके लिए जो हमारा बाथरूम का वाटर है उसको रिसाइकिल करने के लिए बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी जो है, और वो रेट्रो फिटिंग भी पॉसिबल होगा, और नए में हम कैसे कर सकते हैं ये भी होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज है मुझे दिख रहा है, और हम लोग जुड़ेंगे तो आगे हो जाएगा ये चीज। हम आप लोगों का सहयोग इस तरह से रहेगा तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो। कोई मेलिंग लिस्ट वगैरह है आपके पास? जी, कोई मेलिंग लिस्ट टाइप का कुछ है जिससे क्या चीज टाइप का? मेलिंग लिस्ट, ईमेल का कुछ लिस्ट या कम्युनिकेशन? हाँ, वो सब मिल जाएगा। आप मतलब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम लोग जोड़ लेंगे और फिर बाकी सब चीज में ये हो जाएगा। राय साहब का फोन नंबर, आप मोबाइल नंबर बता दें विपिन जी आप। जी सर, चलिए अभी बता दीजिए मोबाइल नंबर। विपिन जी मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है। ठीक है सर, मैंने आपको मैसेज कर दिया है 7757047774। ठीक है, आप जुड़ जाएंगे, हम लोग सब चीज अवेलेबल है हम लोग। और आप कहाँ रहते हैं तो विपिन जी? सर अभी तो मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, एक फार्म रीजनरेशन का। तो अच्छा। इसके बाद शायद पुणे निकल जाऊंगा अभी अराउंड 2-4 महीने में। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि हम लोग कम्प्लीटली आपका IT से रिलेटेड चीज होगा इसमें,
और हम लोग आईटी से मेरा रिलेशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वो तो नहीं, आपका खत्म हो फिर से शुरू हो जाएगा ना, मतलब ये कम्प्लीटली ऑटोमेशन हम खोज रहे हैं और घर में ऑटोमेशन होगा। जैसे अभी हम लोगों के घर में क्या लगा हुआ है, वाटर का ये लगा हुआ है आरओ प्लांट, और सब लोग 5,000, 10,000, 15,000 का आरओ प्लांट लगाते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और पुणे में आप हैं तो पुणे में हमारे एक इंडस्ट्री वाले हैं, उनसे मैं आपका संपर्क बनाने का कोशिश करूंगा। जो इवेपोरेशन जो लो प्रेशर इवेपोरेशन मैं वहां डिजाइन करवाना चाह रहा हूं, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें ये रहेगा हेल्प। तो आपसे हम जरूर ये करेंगे और आप उनसे जुड़ेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग वहाँ उस चीज को आगे बढ़ाएं। इधर हम लोग डिजाइन जो भी कर पाएंगे उधर से वो मतलब वो प्रैक्टिकल अनुभव है उनका इंडस्ट्री है वहाँ, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ही इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट, मतलब इस चीज में वो आगे बढ़ने में उनको खुशी होगी और उनके साथ मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। सर एक और सवाल है, ये यूनिट कितना छोटा बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पोर्टेबिलिटी? मतलब अगर ये जो है हम पांच आदमी के लिए, मतलब एक घर का जो टॉयलेट होगा उसके लिए 5 आदमी का, और मैक्सिमम 2 दिन, मतलब जो मान लीजिए 2 या 4 सेफ्टी फैक्टर लेकर के 20 आदमी तक के लिए हम करेंगे। कभी लोगों के घर में गेस्ट आ जाते हैं तो टॉयलेट का कैपेसिटी जो है 20 तक रहेगा। लेकिन हम लोग ये सब चीज, बहुत अच्छा चीज आप पूछ रहे हैं, तो इस चीज को हम विचार कर चुके हैं कि 20 आदमी मैक्सिमम एक दिन में आएगा, उसके लायक पूरा सिस्टम कैपेबल रहेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट तो कभी किसी का 1-2 ऐसा ही होता है, तो बहुत आसानी से वो फंक्शनल रहेगा। तो 2 आदमी से, और नहीं भी अगर यूज हो रहा है तो ये भी हमको मान के चलना होगा कि 2 महीने तक घर में यूज नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैसे, मतलब वो डिफंक्ट नहीं हो, काम कैसे करते रहे। तो ये सब चीज को हम लोग विचार करेंगे। सवाल के पीछे एक और रीजन ये था कि पोर्टेबल टॉयलेट, जैसे कंपोस्ट टॉयलेट्स हैं, आपने देखा विदेश में काफी रिक्रिएशन व्हीकल या मोटर होम्स हैं, उसमें वो कंपोस्ट टॉयलेट्स डालते हैं। रहता तो एक ही आदमी या 2 लोग रहते हैं, लेकिन उसमें कंपोस्ट टॉयलेट है तो वो साइकिल भी कर लेते हैं, उनको डिपेंडेंसी नहीं रहता कहीं टॉयलेट ढूंढने का। तो अगर मॉड्यूलर यूनिट में आता है तो मिनिमम साइज अगर 1-2 आदमी के लिए वो, तो कितना साइज का हो सकता है? ये जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। ये हार्डली, मतलब हम जो मैक्सिमम जो ये करेंगे, तो जो अभी जो टॉयलेट है नॉर्मली 7 फीट बाई 3 फीट का होता है नॉर्मली, तो या 5 फीट बाई 3 फीट का टॉयलेट होता है। उसमें रेट्रोफिट हो सके या उसके नीचे बाहर में जो मतलब जो ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज है उसका जस्ट पाइप से बाहर निकला, तो वहां पर जस्ट वॉल पर कहीं पर फिट हो सके, उसके लायक हम बनाने का कोशिश करेंगे। वही 4-5 फीट, मैक्सिमम 5 फीट का, मतलब जो ये होगा 5 फीट स्क्वायर का, 5 फीट स्क्वायर नहीं, मतलब 25 फीट स्क्वायर मैक्सिमम, या उससे भी नीचे 25 फीट स्क्वायर भी बहुत हो जाएगा। तो 5 या 15 से 25 फीट स्क्वायर फीट का जो है मॉडल में हम सब कुछ को फिट करना चाहेंगे। तो ये सब चीज हो जाएगा, बहुत ये नहीं है। और आप ही अब इस चीज को आप वहां पर उनके साथ डिस्कस करके वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे उस चीज को। और इधर बीएचयू में भी हम करेंगे, और यहाँ पर अगर श्रीधर साहब के सहयोग से हम लोग IIT दिल्ली में भी इस चीज को करेंगे, तो ये सब कुछ पोर्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 1-2 आदमी, और कंपोस्ट, आप जो कंपोस्ट बोल रहे हैं, हम कंपोस्ट के मतलब वो तो में भी कि कंपोस्टिंग के लिए भी हम व्यवस्था करें, लेकिन हम कंपोस्ट से भी आगे की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स बनाने की बात हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर से घर से हम ड्राई फॉर्म में ही निकाल लेना चाह रहे हैं, और वो ड्राई फॉर्म में उसको यूटिलाइजेबल दूसरे जगह ले जाए, और या वहां पर ही कंपोस्ट माइक्रो छोटा यूनिट और भी लगा करके यहाँ पर ही माइक्रोब्स प्रोडक्शन हो जाए, और वो माइक्रोब्स मतलब एक आध साल भी पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो। और माइक्रोब्स को खरीदने वाले लोग में अलग अलग तरह के टॉयलेट से अलग अलग तरह का माइक्रोब्स का जो कल्चर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी सबको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और करेंगे। इसीलिए हम बीएचयू के हर एक डिपार्टमेंट का हमको सहयोग का आवश्यकता महसूस हो रहा है। वहां पर जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं और ये सब लोग, मतलब पहले हमारा रॉ मटेरियल हुआ, और उस रॉ मटेरियल को इन सीटू जो है हम ट्रीट करके हम किसी एंजाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मतलब मिनी प्लांट जो है ना, बहुत छोटा छोटा प्लांट पॉसिबिलिटीज है, और इस पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर करते हुए पहुंचेंगे वहां तक। हम, जो मेरा अनुभव कह रहा है कि वहां तक पहुंच सकते हैं, जो बहुत बड़ा प्लांट का इस सब के लिए जरूरत नहीं है। तो
अलग अलग चीज को हम कैसे करेंगे आगे। अभी हम मतलब टॉल क्लेम करना उचित नहीं है, हम लोग बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो जरूर कर लेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग और भी लोग जुड़े होते तो अधिक अच्छा लगता। तो इसको हम लोग अभी रिकॉर्डिंग किए अगर होंगे, आनंद जी जरूर लगता है रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो अभी हम लोग डालेंगे BHU के सभी लोगों को या IIT के जो भी लोग और जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड सभी लोगों को हम लोग इसको भेजें और सब लोगों से फीडबैक एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, ये टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ता है सर तो बहुत अच्छा सर। थैंक यू। जरूर होगा ये प्रवीण, हम लोग इस चीज को हम लोग और हम लोग जैसा आगे बढ़ेंगे तो टाटा वाले लोग भी तैयार हैं और इधर हम नवीन जी से भी बात करेंगे। तो इंडस्ट्रीज में पहले हम अंगुल में ही लगवाने का प्रयास करेंगे। नवीन जी के यहाँ पूरा सर आपका स्पीच सुना सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये टेक्नोलॉजी अगर कैसे सर आप कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। ठीक है, होगा ये अभी आगे जब हो जाएगा तब मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक्स सभी को, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।